कुछ तो रीजन होगा जिसके लिए आपने आज शाम को हमारे साथ टाइम बिताने की सोची. एनी रीजंस? कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स which you are suffering from and it is becoming a little annoying for you, something that is irritating you, आपकी quality of life को problem में डाल रहा है. Anything that you would like to talk about, please write in the chat box what exactly is your problem. Anybody from the participants can please start writing in the chat box. So I can see a lot of people fully covered. I'm sure it's very cold in most parts of India. I'm in Maharashtra where it's not cold at all. फिर भी आप लोगों ने वेबिनार अटेंड करने का सोचा, उसके लिए धन्यवाद. Okay, there goes. Knee pain, heel pain and ankle pain. These are the commonest problems that we are coming across even in the youngsters. As young as 35, 36 are also suffering from these kind of slip disc. Another common problem, severe pain in my knee, left side frozen shoulder. So how many of us want to know how to naturally get out of these problems? We all understand this comes under the bracket of musculoskeletal problems and कुछ problems, neuro problems भी होता है, जैसे Parkinson's. So how many of us want to know how to get out of it naturally? I'm sure you all have tried lots of ways. आपने बहुत तरीके अपनाए होंगे. Allopathy, homeopathy and lot of other pathies. But आपको permanent इलाज नहीं मिल रहा. Yes or no? Yes, me, body pain, severe pain in the back. Okay. So ये आपको समझना है कि you are responsible for your own health. आपको अगर ठीक होना है, अपने करंट सिचुएशन से निकलना है, उसके लिए हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा. You have to take charge of your health. So how many of us are ready to take charge of our health? Give me a thumbs up and your permission to share the screen. If I have your permission, I will share the screen in 2 minutes and give you more insight of Ashtang Chikitsa, the online therapeutic program. Okay. So a couple of more thumbs up, waiting for a couple of more thumbs ups. Okay, just give me 2 minutes and I'll share the screen. Okay. Ashtang Chikitsa online therapy for neuromusculoskeletal problems. Is the screen visible to all the participants? Give me a thumbs up. Is the screen visible? Okay. So I welcome you all to the Ashtang Chikitsa webinar. My name is Rachna Bothra and I'll be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. So क्या हम जानेंगे आज के webinar में? You will come to know of a unique therapy for curing your musculoskeletal problems, जिसका listing अभी कुछ participants ने किया. किसी को knee pain है, किसी को back pain है, किसी को frozen shoulder है. That you or someone in your family may be suffering from, but have not yet found relief despite spending a good amount of money on various treatments. Ashtang Chikitsa can also be used as a preventive method so that your internal organs are functioning at their optimum levels. So now I'd like to introduce you all to Swami Raj Vibhuji, a rare Kumbhak yogi. Swami Raj Vibhuji has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of allopathic medicine, not only in India, but Europe and the US as well. So he has taken people out of chronic diseases like thyroid, heart, diabetes, and even life-threatening diseases like cancer.
तो हम सभी जानते हैं कि इन डिजीज का कोई इलाज एलोपैथी में आज तक नहीं है, आपको लाइफ टाइम दवाई खाना पड़ता है। At Avisa Healing and Fitness, we are reviving Ashtang Chikitsa to address the structural issues of a human body. So when we say structure of the human body, the musculoskeletal system is one of them. How the structure of the human body can function in its best possible way, that's our purpose at Avisa Healing and Fitness. A profound way of addressing the aspects of a human body. Now let's come to the fact, who is this webinar for? थोड़ा हमने इसके पहले डिस्कस किया कि ये वेबिनार किसके लिए है. People who are tired of temporary treatments and are looking for natural and permanent solution or a way out. For people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their health problems. Reversing neuromusculoskeletal problems with Ashtang Chikitsa, freedom from pain and medicine. So Swamiji will talk about the Ashta Sharir, the 8 Sharir. So what exactly are the 8 Sharir? इसके बारे में details आप Swamiji के वीडियो से समझेंगे. For right now, these are the 8 softwares in the body, that is Srishti Sharir, Garbha Sharir, Dosha Sharir, Marma Sharir, Pramana Sharir, Sankhya Sharir, Prakriti, and the Vikriti Sharir. Now, when we are talking about the neuromuscular health issues, the most important Sharir that we take into account is the Prakriti and the Vikriti Sharir. So by Prakriti, obviously we mean the natural or the regenerative factor of the body. Vikriti, of course, is the degenerative factor of the body. So जब ये imbalances होता है, तब आपको knee pain, slip disc, frozen shoulder, ये सब होने लगती है. So before that, you are not able to feel it because the imbalances does not show up before you are in your 50s or maybe more. So Ashtang Chikitsa can heal. Of course, the list goes on and on. आज तो हमारे पास बीमारी की कमी है नहीं और डॉक्टर्स एक से एक नाम सुनने को भी मिलता है. So knee pain, lower back pain, hip issues, pain in the leg, drop foot, spine related issues, slip disc, disc bulge, weak spine, spondylitis, frozen shoulder, drooping shoulder, tennis elbow, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, osteoporosis, dislocation, neuropathy, or the nerve issue. So let's hear from Swami Raj Vibhu ji. वो क्या हमें बताना चाहते हैं कि हम अपने करंट सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए क्या कर सकते हैं. Thank you so much for listening to me patiently. I would just tell you how we will proceed in the webinar. इसके बाद आप सुनेंगे स्वामी राज विभू जी का वीडियो रिकॉर्डेड, जिससे आपको पता चलेगा कि अष्टांग चिकित्सा में क्या एग्जैक्टली हम लोग कराते हैं और किस तरह से आप अपने करंट सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं. Then we will have somebody who will be coming live as he or she has been a participant of Ashtang Chikitsa और उन्होंने कैसे अपने करंट प्रॉब्लम से निजात पाया है, इसके बारे में आपको पता चलेगा. ऑफ कोर्स उसके बाद हम लोग प्रोग्राम डिटेल्स भी बताएंगे आपको. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्वामी राज विभू जी himself will be joining us live to answer all your questions, of course within the limited time. जितना questions हम लोग आंसर कर सकेंगे, we will try our level best to satisfy all of you as much as possible. अगर नहीं हो पाया तो हम लोग वेबिनार ग्रुप में आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, जो हम लोग स्वामी जी से पूछ के आपको आंसर कर देंगे. Thank you so much for listening to me patiently. Please write your problems, which I will be taking up in the last end of the webinar. तो आप अपने problems लिख डालें along with your phone and number. Thank you so much. Namaste. Over to Anil ji to
share the recorded session. So let's start. Neuromusculoskeletal problem. We are talking about neuromusculoskeletal problem. आपके शरीर में हड्डियों का, मांसपेशियों का और नसों का जो गठजोड़ होता है, they actually create every movement in your body. आपके शरीर में वही movement create करना है. So I'll take one example and let's go ahead understanding why problem happens and what is the solution. मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करूंगा और उसको लेके हम समझेंगे. So suppose what is the most common problem at this point of time? सबसे common problem क्या है आज के समय? knee pain. Let's take knee pain as an example and understand what we are talking about. हम बात क्या कर रहे हैं उसके बारे में knee pain से start करते हैं, right? So some person who got an injury in one of the knees will get a knee problem in that leg. है कि नहीं? अगर एक नी इंजरी किसी का हो जाता है तो वो उस घुटने में उसको परेशानी होगी. और स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज समहाउ डैमेज्ड वन नी, एक अगर घुटने को किसी तरीके से एक स्पोर्ट्स के पर्सन ने, एक बंदे ने अगर डैमेज कर दिया है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी. बट दैट इज लोकलाइज्ड प्रॉब्लम. डज एवरीबडी हैज डैमेज देयर नीज? क्या सभी ने अपना नी डैमेज कर दिया? नो. People are still getting into problem. Then when you go to the doctor with your knee problem, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने घुटने की प्रॉब्लम लेके, and the most common thing that you hear is degeneration in the joint. जो सबसे कॉमन चीज है, जो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है वो तो आपके घुटने घिस गए हैं, isn't it? Degeneration. So the next thing can be degeneration. यानी कि आपके नी घुटने में जो कार्टिलेज था वो बन नहीं रहा, वो घिस रहा है, वो प्रॉपरली बन नहीं रहा. उसको बनना भी चाहिए था, रीजनरेशन भी होना चाहिए. रीजनरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन सिस्टम, बट रीजनरेशन इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली. डीजनरेशन इज हैपनिंग. दूसरा कारण हो गया, नाउ सम पर्सन गोज टू अ डॉक्टर विथ अ सोलोन नी, इन्फ्लेमेशन इन द नी. लालीपना है उसके घुटने में, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है. The doctor will still say there is a localized problem at the knee. वो करेगा एक्सरे करा लो, वो कहेगा जाके स्कैन करा लो, सीटी स्कैन करा लो, and he would try to see the problem there itself. वहीं पे वो प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेगा और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा. But do you know why inflammation happen in your body? Why inflammation क्यों होता है? सूजन क्यों हो जाती है आपके जोड़ों पे? शायद आपका लिवर ठीक नहीं है. If your liver gets impacted, there will be inflammation in the body. If your digestion is not proper, there will be inflammation in the body. Third thing, if there is an increased uric acid in your body, your kidney is not functioning properly, then also there will be inflammation. So क्या इसका रीजन ढूंढा गया आपके लिए? Why this inflammation is happening? No. So even if you go for a liver test, liver will not show any sign of damage till it gets damaged to 95%. 95% जब तक लिवर का डैमेज नहीं होगा तब तक लिवर के टेस्ट में कुछ भी नहीं आने वाला. So your problem will remain undiagnosed. Usually these diagnoses are not done. तो इन्फ्लेमेशन क्यों है यहां पे आपके जॉइंट में? प्रॉब्लम क्यों? बिकॉज देयर इज अ लिवर प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज अ किडनी प्रॉब्लम, because there is an issue with digestion. Now Rachana ji said after menopause osteoporosis, osteoarthritis is very common. Yes. What does it mean also? आपका घुटना का दर्द क्या रीजन क्या हो सकता है? Hormone imbalance, isn't it? Another reason is hormone imbalance. Hormone imbalance होगा तब भी आपके घुटने में दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा, lower back pain and your knee pain can happen. So what are you doing to balance your hormones? There is no way. कोई तरीका नहीं है. Now if the osteoporosis has happened, हड्डियां अगर brittle हो गई, कमजोर हो गई हैं, पोरस हो गई हैं, बहुत जल्दी टूटने की आशंका रहती है इसके अंदर. If they have become brittle, by calcium, how many people have come out of osteoporosis?
by taking calcium? Not even a single example. एक भी example नहीं है. Rather, do you know if you take long-term calcium, the chances of breast cancer will increase by 200%. So I'm just trying to tell you, don't see problem as a localized deficiency or disalignment or some kind of a breakdown at a localized position. The discrepancy at a localized position is not the only way to look at a problem. It can happen due to many reasons. So what we are talking about is there are 8 major factors, 8 कारण हैं because of which one problem happens, जिसकी वजह से एक problem आती है. So if you really want to come out of problem, then you will have to work upon these 8 factors. 8 कारणों पे काम करना पड़ेगा. This is Ashtang Chikitsa. Now, in the last 50 years, पिछले 50 साल, 100 साल तक का आप ले जा सकते हैं. There is example for that. Nobody has come out of their issues. घुटने आज तक किसी के ठीक नहीं हुए ना. Nobody has come out of their knee problem. ज्यादा से ज्यादा to the extreme, what the doctor will say, do a knee replacement. अपने घुटने बदलवा लीजिए. So what does it mean? It cannot be treated. According to the modern treatment, it cannot be treated. ये ठीक हो ही नहीं सकता. So I would tell you to remember your grandfather, grandmother. अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें सर. क्या उनको इतनी एज में प्रॉब्लम थी? Did they have problem at this age? No. So why deterioration or the problem was not happening at that time to this scale? इस scale में उस समय प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी. आज क्यों हो रही है? Because the system has gone weak and we are not doing anything on this human body to strengthen it. इसको मजबूत करने के लिए, strong करने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे. So let's start Ashtang Chikitsa. The first thing, when I'm talking about Sharira, the word Sharira means body and mind both. जब मैं आपको बोलूंगा शरीर, तो इसका मतलब body as well as mind. Because in Kumbhak Paddhati, in Kumbhak Kalachar or Ayurved Kalachar, in Yoga Kalachar, there is nothing called as mind separately. It's always Sharira. Both body and mind complex is called as Sharira. मैं एक एग्जांपल दूं आपको. लेट्स टेक एग्जांपल. ओपन योर माउथ एंड ट्राई टू थिंक. अपना मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए. ओपन योर माउथ एंड ट्राई टू थिंक. Oh, it becomes difficult. 50 किताबें पढ़ लीजिए, दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा. And just a little bit, if you know how it works, ये काम कैसे करता है, अगर ये आपको मालूम चल गया तो एकदम से पकड़ लेते हैं. You just catch it then and there. तो मुंह खोल के आप सोच नहीं पा रहे. So is your action and your mind different? Is your body and mind different? No, it is not different. ये अलग नहीं. So your body and mind complex constantly strives to live. ये आपका शरीर हमेशा एक जद्दोजहद में रहता है जिंदा रहने के. हाँ या ना? So there is something called as prakriti, new cellular formation. नए नए सेल्स और टिश्यूज आपके शरीर में बनते हैं. And there is another aspect called vikriti. Lot of cells which has aged, they die. बहुत सारे ऐसे सेल्स और टिश्यू जो आपके शरीर में काम नहीं कर पा रहे ठीक से, वो खत्म हो जाते हैं. After a certain time period, certain age, they wear off. This is wearing off is called as vikriti and production is called as prakriti. Right? ये दो चीज हमेशा चल रही है. There has to be a balance of these two things, manufacturing and release. ये दो चीजें हमेशा बैलेंस में होना चाहिए. Now I'm giving you another example. We will take examples so that you understand what I'm saying. बहुत सारे example लेंगे समझने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं. ये these are things you know already, but you are not paying attention to your body. आप ये चीज जानते ही हैं मगर वहां पे ध्यान नहीं जा रहा आपका. So when there is a polluted area, you enter a polluted area. एक बहुत ही प्रदूषित जगह पे आप जाते हैं. If you watch your breath, अगर अपनी सांसों को जरा ध्यान दे सांसों पे,
What happens more, inhalation or exhalation? जरा सोचिए, प्लीज थिंक अबाउट इट, बिकॉज योर बॉडी इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या करते हैं आप? ज्यादा इनहेल करते हैं, ज्यादा एक्सहेल करते हैं? ज्यादा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं? ज्यादा छोड़ते हैं आप, लेना नहीं चाहते आप. योर बॉडी डजंट वांट टू. अगर धुआं कहीं भरा है तो आप देखेंगे आपकी सांस रुक जाती है. यू डोंट टेक इन, यू ट्राई टू एक्सहेल मोर. इफ यू गेट टायर्ड, अगर आप थक जाते हैं, व्हाट इज टायर्डनेस? थकना क्या हुआ? लॉट ऑफ टॉक्सिन्स इन द बॉडी, इजंट इट? What do? You do long exhalation. Oof. This is what you do. You do long exhalation, less inhalation. Now, for holidays, if you go to a hill station, अगर holiday के लिए आप hill station में गए, what happens more, inhalation or exhalation? If you observe, you inhale more. जब भी आपके शरीर में सही सिचुएशन मिलती है, if there is a right situation, your body wants to manufacture more, it inhales more. When there is a bad situation, your body wants to throw out more. आपका शरीर चीजें बाहर निकालना चाहता है, more exhalation. So how is your environment, nearby environment? आपने आसपास के वातावरण का क्या हाल किया है? आपने नहीं, मैं तो कहूंगा सभी ह्यूमैनिटी. I'm just talking about humanity. I'm just saying it in that way. हमने क्या किया? वातावरण का खराब कर दिया. डू यू थिंक योर बॉडी वांट्स टू इनहेल मोर और एक्सहेल मोर? इट वांट्स टू इनहेल लेस एंड एक्सहेल मोर. सो इज कंस्ट्रक्शन हैपनिंग मोर और डिस्ट्रक्शन हैपनिंग मोर? लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, नो कंस्ट्रक्शन. सो आपके घुटने घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? बन तो रहे नहीं, आपने सिचुएशन नहीं छोड़ी. व्हाट काइंड ऑफ फूड यू आर ईटिंग? भोजन कैसा करना चाह रहे हैं? genetically modified food, isn't it? Your body doesn't want to take it. लेना नहीं चाहता, कभी कभी उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है. Your body pukes it out also sometimes. वो बाहर निकालना चाहता है, it doesn't want to take in. So regeneration will happen more or degeneration will happen more? Degeneration will happen more. And correlated with the situation. इसीलिए आपके joints घिस रहे हैं, उनमें दर्द आ रहा है. Regeneration नहीं हो रहा, नई चीजें नहीं बन रही, घिसे जा रहे हैं. So there is an imbalance of prakriti and vikriti. इसका बैलेंस होना चाहिए था, मगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है. So ये दो का अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, there is no chance of recovery. So what are you doing to create a balance of these two things? You are not doing anything. तो अपना ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो होगा कैसे? First of all, so this is the first thing that we need to get to, a balance of prakriti and vikriti, a balance of regeneration and degeneration, and there is a method to do it. इसका एक तरीका है करने का. अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, what do you do? Somebody is hitting you, कोई आपको मार रहा है, you feel damage ना, you think there will be a damage. What do you do? क्या करते हैं आप? सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने आप को, you hold your breath and tense your body, isn't it? Yes or no? आप जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है. Whatever I am saying, you know it already. तो आप सांस रोक के बचाते हैं ना. अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं, if you are watching a horror movie, there are certain scenes that you don't want to watch. देखना नहीं चाहते ना, हाथ रख लेते हैं आंखों पे. एक बच्चे को देखो, see a kid, the kid will close the eyes. So you hold your senses also to protect yourself. अपने आप को बचाने के लिए अपनी दृष्टि को, कहीं पे खराब स्मेल आया तो आप रोक लेते हैं ना सांस. You hold your breath. If there is a bad sound, you close your ears. आप नहीं सुनना चाहते इसको. You hold your senses. So holding your breath, holding your senses is called as kumbhak. इसको नाम दे रहे हैं हम. So it is not just breath hold. It is the hold of senses also. आपकी पंच तन्मात्राएं जो है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, all the 5 senses. You hold the senses to protect yourself. So there is a way of creating more prakriti and balance out the vikriti. You can't stop vikriti. देखिए आप degeneration stop नहीं कर सकते. This is a natural process of life. You will age, but you must age gracefully. ठीक है, तो how to balance vikriti? There is a method to balance vikriti. Ashtanga Chikitsa will give you that method to
enhance prakriti and balance the vikriti. So then next thing, when there is a regeneration, कोई नई चीज पैदा हो रही है, so it will expand, isn't it? वो फैलेगा. एक शिशु इतना छोटा सा पैदा होता है, there is a little infant which gets born and then the infant expands, isn't it? This expansion factor is called as samkhya. The real word for expansion is samkhya or proportionate expansion. This is called as proportionate expansion. सही तरीके से संतुलित विस्तार, इसको क्या कहेंगे? संतुलित विस्तार. Suppose your one hand becomes long, the other hand remains short. एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया. Will you get joint problem in one of the shoulders? आपको एक शोल्डर में joint problem आएगी ना? So if you have one leg a little longer than the other leg, एक पांव ज्यादा लंबा है, दूसरा पांव थोड़ा छोटा है, so you'll get knee pain in one leg. आपके एक पांव में knee pain होगा. You'll get hip pain at one side of the hip. If your body is not aligned, the right side and the left side is not aligned, you will get a problem. Neuromusculoskeletal problem. अगर आपकी एक muscles खिंच गए because of uneven expansion, skin ढीली हो जाती है ना, skin becomes flabby when there is an uneven expansion. You get stretch marks, isn't it? You know what is stretch mark? You get stretch mark because there is an uneven expansion. असंतुलित विस्तार अगर होता है तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है. At muscles, at joints. आपकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकती है, मांसपेशियां फट सकती है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है ना, वहां पे. So disalignment, if you see at this point of time, most of the people do not even walk straight. The way we are sitting, the way we are living our life, we don't even sit straight. कितने लोग सीधा बैठते हैं? You always take a backrest, isn't it? So there is always, there will be, if you don't use your body proportionately, there will be disalignment. और आपकी joint problem disalignment की वजह से भी हो सकती है. There are three basic disalignment that happens in the body. तीन basic disalignment है. नाभि, your navel can get disaligned. We call it dharan. Your chest can get disaligned. आपकी छाती डिसलाइन हो सकती है. That part is called as kaudi. And your legs can get disaligned. आपके जांघें डिसलाइन हो सकती है. That is called as nale in the local terminology. Nabhi, kaudi, nale. Now, if your nabhi, if your navel get disaligned, you'll get into digestive issue, metabolic issue. आजकल diabetes बहुत हो रहा है ना? आजकल diabetes बहुत हो रहा है. Do you know one of the reason of diabetes is disalignment of the navel? But nobody is correcting it. If you have asthma or allergies, respiratory disease, corona is also a respiratory thing. People's respiratory capacity is going down because of the disalignment of kaudi or the chest factor, and the disalignment of the thighs or the legs will get you into hip problem, knee problem, ankle problem, sciatica, those kind of things. So what are you doing to balance it? आप क्या कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए? तो एक काम करें, लेट्स सी हाउ डू वी बैलेंस. हम बैलेंस कैसे करते हैं देखें जरा. अपने दाएं हाथ को पकड़ लें, होल्ड योर राइट हैंड ओवर द टॉप एंड ट्राई टू पुल इट. खींचने की कोशिश करें. जस्ट पुल ऑन द लेफ्ट साइड. बाईं तरफ खींचने की कोशिश करें. व्हेन यू पुल, व्हाट यू डू? ये जोर लगाने के लिए आप क्या करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ. यस और नो? सांस रोकी आपने? Even if you have to align yourself, what is the basic key? वो कुंजी क्या है? वो चाबी क्या है? It is kumbhak. It is holding your breath. So if you use breath hold in a particular manner, you can align the whole body. That is what we teach in Ashtanga Chikitsa, how to align your body. And once your body is aligned, you will feel very light. आपको हल्का महसूस होगा. You lose excess of weight. जो भी आपके शरीर में बचाने के लिए शरीर ने कुछ भी किया है वो आपका ठीक हो जाएगा.
So Sankhya Sharir, this is the second factor. Now again, if you have to align or Sankhya, if you have to correct the Sankhya, you have to use Kumbhak. Now let's go. Let's go to the third part, Pramana. Now, one more thing in Sankhya, what I want to actually tell you that there is a way of doing a movement and holding the breath. अगर आपको तरीका पता है ना, how to align, how you want to align your navel, how you want to align, how you can align your chest. अगर ये तरीका पता है ना, then only you will be able to align. So it needs a little commitment. एक थोड़ा committed atmosphere चाहिए होता है उसके लिए. That is why we teach it in the class. हम क्लास में सिखाते हैं. Now the fourth aspect, प्रमाण शरीर, प्रकृति, विकृति, संख्या, प्रमाण. चौथे पे आ गए हम, प्रमाण. प्रमाण means density. इसका मतलब होता है डेंसिटी, गुरुत्व, भार, डेंसिटी. इसी को धातु भी कहते हैं. We call it धातु. There are different types of tissue in your body, isn't it? आपके शरीर में अलग अलग तरीके के कोशिकाएं हैं. Like bone is very much dense. हड्डी जो है वो बहुत भारी होती है. Your muscles is less denser than your bone. आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उससे कम घनत्व है उसमें. और आपके फैट में एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं, your fat muscle, your fat tissue or adipose tissue is very light compared to the muscles and bones. जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है. People who have denser bones and muscles, their weight is high even though they are lean. वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है. So there are different kinds of tissues. This is called as सप्त धातु. 7 different density tissue की है आपके शरीर में. There are 7 different densities, tissue of different densities. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. These are 7 densities. ये अलग अलग भार के tissues हैं. If the densities becomes less, if you lose the density, your organ functioning will not happen properly. आपके अंदर जितने भी organs हैं, heart, liver, lungs, kidney, ये जितने भी organs हैं ना, इनको काम करने के लिए there is a density required. So we are losing on the density of our organ. हमारी organ weak हो रही है. What is diabetes? Your pancreas is not functioning properly. Your liver is not functioning properly. What is hypothyroidism? Your thyroid gland is not functioning properly. है ना? It has also a relation with liver. What is kidney disease? Your kidney is not functioning properly. Organ damage आजकल ज्यादा है. You will see more chronic disease are there. है ना? Organ से related disease. So how do you correct your organ? Suppose there is a joint pain due to liver dysfunction. Liver के कारण आपके शरीर में joint pain है, inflammation. So you will have to correct the liver. आपको liver ठीक करना पड़ेगा. Is there a medicine to correct liver? No, there is no medicine to rejuvenate your organ. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है आपके हार्ट को ठीक करने के लिए, आपके किडनी को ठीक करने के लिए, आपके लिवर को ठीक करने के लिए, आपके पैनक्रियास को ठीक करने के लिए, आपके लंग्स को. देयर इज नो मेडिसिन. देयर कैन नॉट बी अ मेडिसिन. दवाई हो ही नहीं सकती है. सो यू विल हैव टू वर्क इंटरनली. आपको अंदर काम करना पड़ेगा. अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं? बाहर तो कर सकते हैं. यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन डू वेट ट्रेनिंग, इजंट इट? But people into sports and weight training and exercise, they also get diabetes, they also get heart attack. 40-40 साल के जवान जो है वो बॉडी बिल्डर्स, वो हार्ट अटैक आ रहा है. एक्सरसाइज कैन नॉट रिजुविनेट योर ऑर्गन. एक्सरसाइज से आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला. सो हाउ विल इट हैपन? ये होगा कैसे? शुड वी डू ए लिटिल एक्सपेरिमेंट? एक एक्सपेरिमेंट करें. नाउ कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस. अपने बाएं हथेली को ऐसा रखें, दाएं मुट्ठी बांध ले दाएं हाथ से. Make a fist from the right hand. Keep your left palm like this and try to push your left palm very hard. जोर से धक्का दीजिए अपने बाएं हथेली को. पुश कीजिए, जोर से पुश कीजिए. How do you create this strength of pushing? ये जो शक्ति आप क्रिएट करेंगे, जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं धक्का देने का, कैसे कर रहे हैं? You are holding your breath. You are holding your breath behind. करके देखिए दोबारा. Again, do it. Do it again. See, push it hard. You hold your breath. सांस रोकते हैं आप. बट सांस रोक के by holding the breath, where are you creating the trigger? वो ट्रिगर कहां, वो एफर्ट कहां क्रिएट कर रहे हैं? यहां पे कर रहे हैं एफर्ट, बाहर कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं ना. यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट.
By holding your breath, you are making an external effort. So when you lift something, कोई भार आप उठाते हैं, so how do you lift weight? Weight कैसे lift करते हैं? You hold your breath. You can't lift weight without holding your breath. You hold your breath, and when you lift weight with the right hand, suppose कीजिए आप दाएं हाथ से weight उठा रहे हैं, the trigger goes to the right hand muscles. दाएं हाथ के मसल में ट्रिगर चला जाता है, and this becomes strong. Your right hand muscle grows. ऐसा ही होता है ना, बॉडी बिल्डिंग ऐसे ही होता है ना. This is what how weight training and bodybuilding happens, isn't it? So by holding the breath, you are creating an external trigger. Now, very important part of this webinar. You hold your breath and do not move your body. What will happen? आप सांस रोक लें, अपने शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं. क्या होगा? What will happen? You are not creating an external trigger. अब बाहरी दिशा नहीं दे रहे इसको. तो कहां जाएगा ये? डायरेक्शन कहां जाएगा? इंटरनली. योर हार्ट रेट विल इंक्रीज. आपके हार्ट बीट से हो जाएगी ना, गर्मी लगने लग जाएगी शरीर. यू स्टार्ट स्वेटिंग आफ्टर सम टाइम. पसीना आ जाएगा. वेयर डिड द ट्रिगर गो? इनसाइड. So by breath hold, you can create an internal trigger. Can you direct it towards your heart, towards your liver, towards your kidney, towards your thyroid, towards the other organ and make it strong? इसके अलावा कोई चारा नहीं है. देख लीजिए. How you made one hand more stronger than the other? एक हाथ कैसे आपका ज्यादा ताकतवर हो गया दूसरे से? Because you worked with that hand more, isn't it? आपने उस हाथ से ज्यादा काम किया. And how did you work? Breath hold and direction. Breath hold and direction. That hand became strong. So if you do breath hold and direction inside, that organ will become strong. This is the only way. There is no other way. So how you can rejuvenate your liver, how you can make your liver strong, how you can make your heart strong? By us creating a specific direction. This is Kumbhak therapy, which is a part of Ashtanga Chikitsa. So how do you correct the Pramana Sharira or the organ body? By creating an internal trigger. ठीक है? तो और दूसरा तरीका, there is no medicine for that. कोई दवाई नहीं है उसके लिए. And there cannot be a medicine. कोई दवाई बन नहीं सकती. So at this point of time, everybody's organ is getting weak. Not even people like you. For youngsters also. छोटे बच्चों के भी organ weak हो रहे हैं. इस वक्त ये जरूरी है कि अंदरूनी काम किया जाए. It is important to work inside and rejuvenate your organ, make your organ strong. Now let's come to the other part, which is marma. Your organ, muscles, bones, they all work together, isn't it? आपका heart, आपके muscles, your nervous system, muscles, bones, they all work together. If you take out heart, you will not be able to move. You will not be able to live. If you take out liver, you will not be able to live. So they all work together. So there are junctions. ऐसी जगह है जहां पे की मूवमेंट होती है. There are junctions. Muscle and nerve junction. Muscle and bone junction. Two bones and there is a junction. ऐसा ही है ना? दो हड्डियों के बीच में एक जोड़ है. Organ, आपकी आंतों के बीच में. Lungs, organs and the external body is connected. ये सब जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई. ये जो junction point है, this junction point of the various organs is called as marma. If this junction point is okay, lubricated and flexible, you can perform better. अगर ये junction point ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक से movement कर रहे हैं, तो आपका शारीरिक movement ठीक से होगा. Your organ function will happen properly. So these are called marmas. So marma needs a constant rejuvenation. इनको constantly एक तरीके से movement देना पड़ता है. To keep it fine, we need to actually make them move in a particular way constantly. For example, I'm giving you another example. If your marmas are not functioning properly, there are two kinds of circulatory movement in your body. आपके शरीर में दो तरीके का movement होगा, blood circulation and lymph circulation. ऐसे मान के चलिए, just think about it. There are tissues and cells. आपकी कोशिकाएं हैं. The waste product gets thrown out of their walls. वो अपने बाहर अपना waste छोड़ देते हैं. And by movement of tissues and cells, these waste product comes to a certain place called joints or
lymph node, अंग्रेजी में उनको lymph node कहते हैं. All your joints are lymph node. आप ऐसे खटकाते हैं तो आवाज आती है ना. If you just tense the joints, there will be a sound. टक से आवाज आएगी ना. क्या हुआ? Gases release हुई. There is a release of gases and toxins. So it only happens through movement. वो बिना मूवमेंट के नहीं होगा. ब्लड सर्कुलेशन कैन हैपन विदाउट मूवमेंट बिकॉज देयर इज अ पंपिंग ऑर्गन. एक हार्ट है जो ब्लड सर्कुलेशन करवा रहा है, लिम्फ का कोई सर्कुलेशन नहीं करवा रहा. इट विल ओनली हैपन बाय मूवमेंट ऑफ द बॉडी. सो इफ यू मूव द बॉडी इन अ पर्टिकुलर वे, दीज टॉक्सिन्स दे गो आउट ऑफ द बॉडी. देयर इज अ कांस्टेंट रिजुवनेशन ऑफ सेल्स. इंटरनल एनवायरमेंट साफ बनेगा आपका, तभी देयर विल बी प्रकृति, न्यू सेल्यूलर फॉर्म, बेटर सेल्यूलर फॉर्मेशन. अगर वो एनवायरमेंट ठीक नहीं होगा तो रॉन्ग सेल्यूलर फॉर्मेशन कॉल्ड, एंड दिस इज कॉल्ड एज कैंसर. गलत सेल बनते हैं तो कैंसर कहते हैं ना उसी को. सो बिकॉज ऑफ एन इंटरनल एनवायरमेंट, कैंसर हैपेंस बिकॉज ऑफ अ कैंसरस एनवायरमेंट. और उसके लिए इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट, देन देयर शुड बी कांस्टेंट रिजुवनेशन ऑफ मर्म. तो इसमें हम मर्म, अष्टांग चिकित्सा में, देयर इज अ पार्ट इन अष्टांग चिकित्सा, देयर इज अ पार्ट कॉल्ड एज अंगन्यासा एंड मर्म विन्यासा, which actually works upon, there is a particular movement in a particular way with a particular kind of breathing. It's a part of Ashtanga Chikitsa. Now go a little further. Now everything is ready for functioning. Now tissues, organ, joint, marma, सब कुछ तैयार हो गया. Now you function, you live your life, you do movement, you do function. काम होता है ना. तो function, there are three things which are attached to function. तीन चीजें हैं function के साथ में जुड़ी: material, energy and movement. Function means three things: material, energy and dynamism. इसी को कहते हैं कफ, पित्त, वात. This you must have heard of. आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी. So everybody is educated. You know, at least you must have heard of these words called vata, pitta, kapha. Most of the people do not know what it is. They try to make an idea. But material, energy and dynamism, kapha, pitta, vata. Most of the problem is attributed to dynamism. वात दोष ज्यादातर प्रॉब्लम के साथ में जुड़ा हुआ है. So what is your joint problem? What is it called as? वात दोष. Right? मूवमेंट को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? व्हाट इज वाता? मूवमेंट. वाता ऑल्सो क्रिएट्स पेन. सो मूवमेंट, हाउ डू यू कंट्रोल मूवमेंट? इफ यू वांट टू मूव योर हैंड, हाउ डू यू कंट्रोल द मूवमेंट? अगर आप ऐसे ऐसे तेजी से हाथ हिलाएं, देखिए पीछे, अपने पीछे देखिए, हाउ डू यू कंट्रोल दिस मूवमेंट? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ इन अ पर्टिकुलर मैनर. अपनी सांसों को एक तरीके से चलाते हैं इसके लिए. यस और नो? You control your movement by holding your breath. Without holding your breath, you cannot control your movement. So, वात दोष से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? If you want to come out of वात दोष, what you need to do is control your movement. कुंभक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? There is no other way. If you apply joint pain relief sprays or some gel, उससे क्या होगा? Temporary, you will get a joint pain relief. Temporary, it's really temporary. क्या आपका घुटना ठीक हो जाएगा? No, it will not happen. So if you want to really have a control over the movement of your body, over your life, then you must practice कुंभक. कोई और चारा है नहीं. So दोष शरीर को, if you want to correct the dosha imbalances in your body, the most potent way is kumbhak. Other ways are also available, but they are less potent. There are medicines, all the herbs, Ayurvedic herbs, they do vata pitta kapha balance, but to a certain extent. केवल एक extent तक ही कर सकते हैं. They can be a little help, but they cannot be cure, rejuvenation. If you do kumbhak for 3 years, you will become 10 years younger. This is called as rejuvenation. So, neuro problem, usually
कहते हैं न्यूरो प्रॉब्लम. Somebody was talking about so what people were talking about? Spondylitis and what else? Neuro problem. Now something called as drop foot, neuropathy, है ना? ये चीज आपने सुना होगा. You must have heard of these things. So neuropathy happens on, you don't have a control. Parkinson, again a neuro problem. Huh? There is degenerative disease, which the doctor will say it doesn't become fine. It doesn't. No, there is no solution for that. There are sometimes autoimmune disorder of nervous origin, for which there is no solution. कोई solution है ही नहीं. So I'll tell you some examples. मैं आपको कुछ example बताता हूँ. So there was a person who was suffering from paralysis. एक 64-65-year-old professor of Delhi University or some associate Delhi University का कोई college है उसमें. So he suffered a paralytic stroke and lost sensation in one part of the body. He started doing Kumbhak. In 3 months' time, he regained the sensation by almost 95% on that part. Now another example. There is a marathon runner. She's a lady, marathon runner. She started developing drop foot, uncontrolled legs. She couldn't control her legs. Suddenly, uska marathon सब बंद हो गया. She was almost like stuck at one place. She started doing Kumbhak. And after 4 to 5 months, she reported, I am preparing for next marathon. So there was a person who was suffering from myasthenia gravis, where the muscles are not in control. आंखें पड़कती रहती हैं, muscles हिलते रहते हैं. They are in always fluctuating mode. He started Kumbhak, and in 3 months' time, he reported that it's gone maximum, like it's gone about 80 to 85% it's gone. Another person who was not able to speak for more than 2-3 words, he was not able to speak. Uska voice box related issue tha. It is also a neuro origin. So he started Kumbhak. In 4 to 5 months time, he said, I can talk for long now. मैं काफी समय तक अब बोल सकता हूं जो पहले नहीं बोल सकता. So these are examples of people who have done Kumbhak and they have come out of the problem of neuro origin. I'm talking about problems you're talking like Parkinson, paralysis, and neuropathy. You can actually revive. Your whole nervous system can revive. Let's get to the second last part, or the 7th Sharira. It is called as Garbha Sharira. Garbha means a quality. The Sanskrit word Garbha means a quality of environment, an environmental quality. So Garbha fundamentally is called as quality, and the quality can be created by something called as samskara. Samskara is a way of creating quality. So Garbha means quality. Garbha, quality or genetics are correlated. I'm talking genetics. When you say Garbha Sharira, it is your genetics. Your genetics is responsible for your personality, for the quality of your body. How much your body has potential in what direction, in what vertical. It is your genetics. Isn't it? This is called as Garbha Sharira. The Garbha Sharira gives you the genetics. Can you correct your genetics? It has also some relation with what you call as karma. When we say samskara, it is called as related to what you have done. So your genetics is also what you have done. Your genetics is also what you have done. So can you correct your genetics? Yes, 99% of your genetics can be changed. Now, the modern research says 99% of the total genetical quality is epigenetics, changeable genetics, variable genetics. You can actually change your genetics.
So earlier theory of genetics cannot be changed is now burst, is now been bursted. So now you can change your genetics also. If the doctor says, oh, you have a problem because of your genetics, then tell the doctor, please change my genetics, because modern research says genetics can be changed. But they are thinking of stem cells, which is not the right way to approach genetics. I am telling you, Kumbhak is a way to change genetics. When you do Kumbhak, you are actually applying epigenetic triggers inside the body, which will change your genetics. And that's why people into diabetes, they drop their medicine. People of who have blood pressure issues, they don't need a medicine to control their blood pressure. Whatever genetics you say or what is being said in the world today can be changed. But you have to do certain things in a certain way. Only then it will happen. The last part is Shrishti Sharira. Eighth Sharira is Shrishti Sharira. Shrishti means what? In which you are sunk. Like Shrishti for a fish is the sea. एक मछली के लिए समुद्र सृष्टि है. So the water around her is सृष्टि for her. So for human being, the cosmos, ये ब्रह्मांड is सृष्टि. So it applies lot of forces. Na? What is environment? What is universe? Lot of forces acting. Na? You walk on earth in the force which is called as gravity. Gravity pulls you down constantly. Within this gravity, you walk. So you make an effort against gravity and then you walk. There is a very high environment or the pressure of this atmosphere. Atmosphere का pressure है ना आपके ऊपर. उसके बावजूद भी आप move करते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं. You do everything. So this is Srishti. The forces of environment is Srishti. Now I am bringing up something very, very unique and important. Now suppose gravity pulls you down. You know this, gravity pulls you down. Why do you grow tall? Gravity तो आपको नीचे खींचता है ना, गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है. आप लंबे क्यों हो जाते हैं? एक पेड़ ऊपर क्यों उग जाता है? Why a tree grows up? Why a bird flies? Because you must be applying a force opposite to gravity. Yes or no? आप जोर लगा रहे होंगे gravity के विरुद्ध. आप जानते भी नहीं हैं. You don't even know, notice. But you are applying a force opposite to gravity. Suppose कीजिए आपके अंदर this force becomes weak inside you. Gravity के opposite force लगाना कमजोर हो गया. आपको कैसा फील होगा? How will you feel in your body and mind? You'll feel heavy, pulled by gravity. आप उठा नहीं पाएंगे ना, हल्का महसूस नहीं कर पाएंगे. Will not feel light. How will you feel? Heavy. ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो नीचे heavy feel करेंगे. Where will the heaviness impact? ये heaviness कहां असर करेगा आपके? Joint पे? It will impact the joint? Yes or no? This heaviness is called as stress. S-T-R-E-S-S. You talk about stress, but आपको मालूम नहीं है stress क्या है. You think situation creates stress. No. Put 10 people in the same situation. 5 will get stressed, 5 will not. It is not the situation. It is your inability to handle a situation creates stress. आपकी क्षमता नहीं है अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, तब आपको उसमें स्ट्रेस होगा. So are you doing anything to increase your capability and the capacity to handle situation? No, you are not doing it. So I talked about one force. एक फोर्स के बारे में बात किया. The upward force is called उदाना. In कुंभक कलाचार, in कुंभक विज्ञान, we call it उदाना. इसको हम उदान ही कहते हैं. Have you heard of this word उड़ान? उड़ान सुना है नाम आपने? उड़ना, उड़ान. This has come from the root udana. That means opposite to gravity force. There are 84 forces which you are struggling every moment through. 84 अलग-अलग forces में आप काम करते हैं. Your organs function according to these forces. So which force has gone weak in you because of which you have got into one problem? आपके अंदर कौन सा force weak हो गया जिसकी वजह से आप problem में आ गए? That is what we diagnose in Prana Shakti diagnosis. यही प्राण शक्ति diagnosis है. We find out the force which has become weak in you, and because of that you have got into one problem and then another and then another and then another. This is the root cause. So we do Prana Shakti diagnosis.
And in the 9 weeks, you learn the basic module and you get an extra class where the whole module get customized according to your system. 9 हफ्ते तक आप एक मॉड्यूल सीखते हैं. There are 3 things in that module which actually takes care of all these 8 aspects. ये 8 चीजों का वो ध्यान रखता है. 3 चीजें हैं. The first one is called as Anganyasa. The second one is called as Hatha Vinyasa. The third one is called as Kumbhak therapy. So in 9 weeks, you learn this module of 3 steps, and then you get an extra class of customization where we diagnose you and customize the whole module according to your system and problem. This is Ashtanga Chikitsa. So it takes care of all the Sharira. Sharira means body and mind complex. Prakriti, Vikriti, Sankhya, Pramana, Marma, Dosha, Garbha, Srishti. And it's a cycle. It's a cycle. So if you work upon the body, see, you will never get a magic pill. If you wait for eternity, you'll not get a magic pill. कोई magic दवाई नहीं बन सकती शरीर के लिए. Why? Because this body is first of all not designed for chemical medicine. Is your body designed for chemical medicine? No, your body is not designed for chemical medicine. जब आप एक पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो डीजल डालते हैं उसमें. Would you put diesel into a petrol vehicle? No, never. Common sense, it is designed for petrol. So when your body is not designed for chemical medicine, where does this common sense go? ये common sense कहां चला जाता है इस समय जब हम अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं? That is why more medicine, more disease in the last 50 years. Enough example, isn't it? So you must work upon this. Body is magical. Let me give you this guarantee. ये शरीर बहुत मैजिकल है. ये ठीक करता है अपने आप को. This is the only gadget which is self-corrective or it corrects itself. ये खुद को ठीक करता है. आप मौका दें इसको. You empower your system and you'll see magic happening in your life. So it is important. Wherever you invest your time, money, focus, that thing grows. आपने दवाइयों पे इन्वेस्ट किया पिछले 50 सालों में, कितनी बढ़ गई? वो आपको रूल करने लग गए. आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए. जस्ट इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड you'll see your health will improve. Not only your health, the health of next generation will improve. So it is our responsibility that we focus on this beautiful system that we have been given or gifted with and transform our lives, make our lives better. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूंगा. So the team will take you forward. Team आपको आगे बताएंगे. Thank you so much, Anil ji, for sharing the video recording. I would now request Vasanti ma'am. Vasanti ma'am, can you hear me? To please join us and share her journey of Ashtanga Chikitsa. Vasanti Londe ma'am. Okay. Otherwise. Okay. Yeah, I'm unmute now. Actually, thank you so much, Vasanti ma'am, for joining us. Yeah. Good evening, everybody. And I'm Vasanti, and I'm a professor in a technical college. And I wish to report my deep happiness and achievement in the last 9 weeks that I joined the Kumbhak therapy. तो मैं लास्ट 9 वीक्स में कुंभक थेरेपी मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है कोर्स. मैं उसका खुशी बांटना चाहती हूँ आपके साथ. So 6 years back, छोटा सा बैकग्राउंड देती हूँ कि मेरे को क्या बीमारियां थी. 6 years back, I was in ICU for severe pneumonia, leaving my lungs very weak, often getting breathless while walking little fast. तो मेरे को निमोनिया हुआ था ICU में, and अभी चलने के टाइम सांस फूल जाती है. Then pandemic आया and मेरा तो सारा एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गया and खा पी के मोटे हो गए. I became overweight during the pandemic. Then I could not no longer sit cross-legged nor sit on the floor and हर तरीके की बीमारियां जैसे शुरू हो गई. So I
मैं 5 months बैक मैं घर में बहुत बुरी तरह से स्लिप हो गई एंड मेरा राइट घुटना बहुत बैडली इंजर हो गया and 2 months of medicine. So I slipped very badly in my house and my knee really swelled up that I could not even take one step. So 2 months of medicine and continuous physiotherapy. Still I could not walk more than 10 steps. And मुझे बहुत लगता था, बहुत उदास हो गई कि अब कैसे होगा मेरा. So I really was in a depressed state. Then my physiotherapy ma'am suddenly told me, ma'am आपको ना arthritis हुआ है, अभी ये जिंदगी भर रहने वाला है. So I could not take that. So I felt terribly depressed. I thought कि मैं तो athletic professional mountaineer हूँ, कॉलेज जाती हूँ, ये suddenly क्या हो गया? I mean, what has happened to me? All of a sudden, I'm reduced to this helpless state. So I felt very gloomy. इस background में I was one day looking at Facebook, just time pass, and I came across this Kumbhak therapy. And for my first introductory lecture, गुरुजी का जो आप लोगों ने आज सुना, ऐसा ही था. And I really felt कि ये मेरे लिए है. तो मैंने ज्वाइन कर लिया, घर पे बात करी and I joined. And my क्रियाज मैं तो शुरू में स्टूल पे चालू कर दिया. I sat on the stool and did my क्रियाज. And even standing के लिए भी मुझे possible नहीं था. But I said no. If everybody is, so many people have joined, more than 80 people, so then I must do my best. And so as weeks progressed, शुरू में तो of course क्रियाज मुश्किल लगे, लेकिन धीरे-धीरे आने लग गया. So after 2 weeks, to my amazement, I found my breathing had become regular, my constipation was gone, and knee pain had reduced. तो मेरा knee pain कम हो गया, constipation गायब हो गया. एंड जो गुरुजी बताते हैं घी खाओ, ये खाओ, वो सब किया. मेरा ब्रीदिंग बहुत रेगुलर हो गया, तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे लंग्स थोड़े इम्प्रूव हो रहे हैं. देन टू अनदर 2 years के बाद में आई फाउंड आई कैन वॉक हाफ एन आवर. मतलब बड़े आराम से चलने लगे. आई कुड वॉक सो इजीली दैट आई डिसाइडेड टू गो बैक टू कॉलेज. तो नाउ विदिन 2.5 months के ब्रेक के बाद, जस्ट इन 4 weeks ऑफ कुंभक, मैं कॉलेज जाने लग गई. पूरा दिन कॉलेज में रहने लग गई. शुरू में थोड़ा मुश्किल गया, बट स्लोली आई गॉट यूज्ड टू इट. 6 weeks डाउन आई कुड नाउ स्टार्ट. कोशिश करी एंड आई स्टार्टेड सिटिंग ऑन द फ्लोर. एंड मैंने स्टैंडिंग क्रियाज भी चालू कर दिए. इतना मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कर सकती हूँ. देन 8 weeks आई वन डे सडनली रियलाइज, द फ्रेंड रिमार्क, तुम दुबली होती जा रही हो. I realized I have lost 4 kgs, which I never expected. I was so happy. मैंने पूरे ग्रुप में शेयर कर दिया. Then so in the 9th floor now I can report that I can sit on the floor. पूरा लक्ष्मी मुद्रा नहीं आता है, लेकिन 80% मेरा इम्प्रूवमेंट हो गया है. Knee pain is gone. थोड़ा पैर दुखता है, but I can walk for 2-3 hours. एंड आई रियली वांट टू से दैट मेरे 9 वीक्स हो गए हैं. मेरा कस्टमाइज प्रोग्राम मुझे मिलने वाला है. मैं उसके लिए वेट कर रही हूँ. डेली मैं एक्सरसाइजेस करती हूँ. एंड आई वांट टू थैंक गुरुजी वेरी वेरी सिंसियरली फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट एंड ऑल द मेंटर्स एंड द होल अविसा टीम. And Guruji guides us and our mentors help us step by step, making the Kriyas as very doable and making us very strong and confident. So I also want to pay my gratitude that within 2-3 weeks, जब मैंने improvement देखा, as I became better, I felt I want to give back to my friends, people who are not on the Facebook. So I started telling all my relatives and friends कि आप join करो. So 10 friends and relatives have already got introduced to this introductory webinar, and 3 of my friends have already joined this course. I feel very good that I am not just keeping it to myself, but I'm sharing this with everyone. And so to conclude, I would like to say thank you, Guruji, very, very much for helping me to dream again, to lead a healthier, happier life, because I want to do world tour. And I think I will be able to do it very soon. Thank you very much. Thank you so much, Vasanti ma'am, for sharing us your journey of Ashtang Chikitsa. Now I would like to invite Meghna Bhatkal ma'am to share her journey. Meghna ma'am, am I audible?
Meghna ma'am. Hello, am I audible? Yes, yes, very much. Yeah. Good evening, everyone. Uh, I first and foremost, I would like to thank all the Avisa team and especially Swamiji for getting such kriyas which really are going to enrich everyone's lifestyle. Uh, to give you a background, how I joined was I am an athlete by profession also earlier, but then I had a hairline fracture in my right leg while I was doing a salsa performance, and I had to get my left leg operated because of varicose veins. But still, I never stopped walking or anything, and I used to do yoga. But as Professor Vasanti also said, the pandemic was really the one which brought me to a state where working from home started, and I stopped doing all my yoga, walking, everything stopped. And because of a lot of working from home, long hours and everything, as Swamiji rightly said, that we always say that situations have brought stress, but it's on how your way of dealing with the situation, because you cannot deal with it, that stress comes into your life. And because of that, 4 months back, not 4 months, yeah, in September, I was diagnosed with cervical and frozen shoulder and stiff neck, all three together, because of which it was very difficult for me to work. And my ortho, he told me that you'll have to take a break from your career. And I work in a pharma company, and it was something like, my colleagues and everybody said, you do this evaluation, that evaluation. And I was really very upset because I am not that kind of a person. And I always like to, be active and everything. And suddenly I had to be dependent on people. Like even for walking, I had to always take support of my husband, because जब भी मैं उठती थी तो suddenly I used to get a convulsion and I used to start vomiting and everything. People thought I had vertigo, but my ortho said no. And then suddenly one of my friends, she just sent me a video about Avisa, and she said, see if you want to join. And rightfully, I got the link for the webinar, but due to my professional thing that I'm working with global clients, I missed the webinar because of the conference call. And but then I made up my mind that since I was a yoga teacher and Kumbhak is something like breathing and everything, which I have been following pranayam. And to be very frank, pranayam and Kumbhak and all these breathing exercises have helped me to have a normal delivery at the age of 37. So I thought that no, there should be something. And since I practice meditation, you get those intuitions like, nay, this is the right path for you. Medicines are not. And I am a person, I don't like to take medicines. So I joined the course, and I'll tell you my experience. Like, because of my hairline fracture, I could never sit cross-legged for a long time. 2 minute में ही पैर दर्द करते थे, पीछे लेके बैठती थी. So then when they showed us the kriyas, I was like, oh, really will I be able to do? And I told my husband that to please sit and see, because मेरे को ये समझ नहीं रहा है कि कैसे करूं. Then they said that you can do it also sitting on a chair. So I did all the kriyas of Kumbhak, which was first Vata section was taught to us, sitting on a chair. And like, I said, okay, ये मैं कर पाऊंगी, वो कर पाऊंगी. But to my amazement, in the second week itself, I just thought that let me try. Thoda sa pain kam ho gaya, because in winters my both legs used to pain a lot because of the hairline fracture, ligament tear, and varicose vein operation. So always winters mein bahut dard karta tha. Suddenly I started feeling like, अरे दर्द तो कम हुआ है, ऐसे कैसे? So I said I'll sit cross-legged. And to my amazement, I could do all the kriyas sitting cross-legged on the floor. And that is when my husband was really shocked. He's telling, Are, ye kya? You can't sit too. And the thing was that he started sitting with me for all the sessions. And not only that, he started doing kriyas with me every day. And till date, we both together do the kriyas. So I'm really, really thankful to Swamiji and Avisa team to introduce such a beautiful program. And I'm eagerly waiting for my customized, though I know that I'm not so this thing like कि happy चाहिए. There are people who are like कि मेरा customize कब मिलेगा, but I feel that whatever is taught in this, hello,
Am I audible? Yes, ma'am, you're very much audible. Yeah. So in this 9 weeks also, what is taught is really a great experience and customized. So it will be like heaven, like, and I'm not going to leave this. It is like, you know, I am going to do this for life because it is going to give me a beautiful lifestyle. And I urge people that, you know, please join. I have even told my friends, I said, don't wait for a situation to come in your life that you have to go. When you have the opportunity, please join and, you know, learn to do this. Kriyas and all. It will really help you all in today's stressful life, as people say. So all of y'all have come to the right place, and I thank everybody in Avisa team. And I as Professor Vasanti said, even I have lost 6 kgs of weight. I have also become obese because of many other reasons, and I'm happy that I'm losing weight slowly. And once I lose weight, and whatever the frozen shoulder, and even my physiotherapist for a change, she was like, suddenly आपके इतना movement कैसे होने लगा हाथ का? Like, I just kept quiet. I smiled. I didn't say anything first, but then I told her that yes, I have joined Avisa Kriyas, Kumbhak Kriyas, and that is helping me, and I'm going to do that for lifetime. So she was like, "Oh, then y'all will stop my business." I said, "I don't want to comment anything on that, but I'm not going to leave this because that is helping me, and I am a person who doesn't like to be dependent on anybody. So this is something, it is on me myself. So this is the independence which Swamiji has given, that you yourself have to take care of yourself. Nobody is there to take care of you. Apne upar hai. So please even tell even the younger generation, because of the way stressful corporate life ho rahi hai, they should join now only, not when a problem comes. I would urge people to join now. And I have even forwarded to many of my friends, colleagues, that please do this. And I thank Avisa team also for giving this opportunity to share it with all of you all. And my husband is like, oh, he's more grateful because he's like, ये तो बहुत ही अच्छा मिला है हम लोगों को. So, and I will like to be one of the mentors, but जैसे जैसे मैं progress करती जाऊंगी, obviously after a year, I would love to be a part of the Avisa team. Thank you so much, Meghna ma'am. And we Thank are you everyone. obliged from the bottom of our hearts to hear words from you, and all the participants have heard that आप join करते हो neuromuscular health issues से के लिए, आपका weight reduce होता है, the smile on your face comes back. Yeah. What could be better than this? Yes, Does everybody agree with me? इससे अच्छी Very बात much. हो सकती है कि दवाई नहीं है, और जो आप जिसके लिए ज्वाइन कर रहे हो उससे कुछ हिडन बेनिफिट्स और भी मिलता है आपको. So one Yes. package and 10 benefits. Isn't it wonderful? So now let's come to know about the program details from Anilji. Over to Anilji to share the program details. Thank you so much. Thank you. Anilji, I've made you the host. Okay, thank you. Just give me a few moments. Rachna ji, are you able to see my screen? Yes. Okay. All right, so let's get to know the details as a lot of you must be waiting for. काफी लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रोग्राम डिटेल्स क्या है, क्या डेट्स हैं, क्या फीस है. So जल्दी से हम ये जान लेते हैं ताकि स्वामी जी हमें ज्वाइन कर पाएं और आपके सभी के क्वेश्चंस ले पाएं. First of all, this is a guided program conducted online by trained Kumbhak mentors on the Zoom app. ये guided program है जो trained Kumbhak mentors हैं उनके द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है. पहली चीज तो ये है, जैसा कि आप अब तक जान चुके होंगे. Program modules. There are 3 modules in the full program, in the complete program. Module 1, 2, and 3, or you can call them Vata, Pitta, and Kapha modules. Each module is of 21 days of duration. हर एक मॉड्यूल 21 दिन की अवधि का है. अब यहां पर आप देखेंगे 9+1 और 10 वीक्स.
Why 1 week extra? We'll get to know in a short while. एक हफ्ता extra क्यों है वो हम थोड़ी देर में जानेंगे. There'll be 2 live classes every week, out of which one will be the learning or the main class, and one will be the mentoring or the practice class. So next steps kya hai? What are the next steps? You pay the program fee, and we have a special webinar pricing for people who have stayed back. We have a special pricing for them than the normal price. After that, you fill the participant onboarding form so that we can create login credentials for course access. What is this course access? You'll get to know shortly. And then you start your classes, starting with module 1, then module 2 and module 3. Total classes, again, module 1 has 6 classes, 3 learning or main class plus 3 mentoring or the practice class. Same is for module 2 and module 3. तो सभी modules में total 18 classes हैं. 6 into 3 modules makes it 18 classes. Tusharji, please don't scribble on the screen. Then you see one customization class also, 18 learning classes plus one customization class. What is customization? We'll get to know. Batch 114 starts on 23rd January, which is a Monday at 7 PM. 23 जनवरी को, जो कि एक सोमवार है, 7 बजे शाम को हमारा 114वां बैच स्टार्ट होगा. मॉड्यूल 1 के लिए मेंटर क्लासेस या प्रैक्टिस क्लासेस थर्सडेज को होंगी, जैसे कि मंडे को है मेन क्लास और थर्सडेज को. जब मॉड्यूल 2 स्टार्ट होगा तो मेंटर क्लासेस एक दिन आगे हो जाएंगी, तो फ्राइडे को हो जाएंगी, और जो आपकी मेन क्लास है वो हो जाएगी ट्यूसडे को. तो इसी तरीके से मॉड्यूल 3 के लिए सैटरडेज को मेंटर क्लासेस और वेडनेसडे को मेन क्लासेस. व्हाट इज द क्लास एक्सपीरियंस लाइक? पूरा क्लास का एक्सपीरियंस क्या होता है, जैसा कि आप समझ चुके होंगे, ये लाइव सेशन है. दीज आर लाइव सेशंस कंडक्टेड एंड देन mentors watch all the participants so that they can give you feedback, and this is the reason why you have to keep your cameras on so that the mentors can watch you. Then you get written instructions in English and Hindi, and then session recording. All the live classes are recorded and made available to all the participants. There will be a lot of extra things that will be that you'll be getting along with your main practices. There'll be mental practices, unique diet perspective. Mind you, this is not a diet plan. This is a diet perspective. You'll get a video from Swamiji about how to use food so that it does not harm you. There's no diet restriction as such. Many people ask us if there are any dietary restrictions. There are none. You can eat vegetarian, non-vegetarian, whatever is your normal food. And then there are simple detox processes, and a lot of knowledge is shared with all the participants. Now, before I announce the program fee, I'd just like to bring your attention to the kind of money that you could already be spending just to manage the disease that you are into. These are yearly figures. I've written doctor fee here, which may be 6,000 to 12,000. And then if you are into physiotherapy, another 12,000 to 30,000 you could be spending, and medicines may be costing another 15,000 to 30,000. And total, all of these makes it 33,000 to 72,000 per year. And then we won't talk about the side effects of allopathy here. We all know about it. Why I'm sharing is this, because Just 2 minutes. There has been some technical error. So Anil ji is going to just log in again.
Anilji, I've made you the host. Okay. I got disconnected. So if I get disconnected, Rachna ji, please continue. Yes, yes. Just give me a second. I'll just share my screen again. Are you able to see the screen? Hello? I'm not able to see the screen. Just a second. Can you see the screen now? Yes, 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 I can. Okay, okay, great. Sorry for the inconvenience, everybody. Let's get to the details of the program. It's also very important to discuss about a few things so that we understand who this program is not for. ये भी जानना जरूरी है किन लोगों के लिए program नहीं है. This is not for people who are looking for a magic pill and want results tomorrow only. We have this habit of popping a pill or eating a medicine every time we get into a slight touch of the problem. कफ होता है, कोई खांसी जुकाम होता है, तो तुरंत हम एक दवाई ले लेते हैं. ये आदत बन चुकी है. This has become an habit from childhood only. So we are used to, a lot of people just tell me, I talk to a lot of people before they enroll, that just कुछ ऐसी दवाई नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि उससे तुरंत हम खा लें और ठीक हो जाए. ऐसा कुछ नहीं है. If you want a permanent result, the results will be seen for sure, but they may take some time. Okay, so just wanted to clarify. अगर आप दवाई की जैसा कुछ ढूंढ रहे हैं, this is not for you, and this is not for those who are not ready to work on their body. इसमें समय लगता है. If you are not ready to invest 80 to 90 minutes every day on yourself, then this program is not for you. This therapy will require you to work on a daily basis. So just want to make it clear so that you don't have any false ideas about it. And then this is not for those who are impatient. We understand that when you're into a problem, when you're into pain, the patience level goes down, but still wanted to just emphasize this point that you need to be patient. And it's not for those who are looking for a free treatment or just some tips. Many people tell us that you had advertised that this is a free treatment, but this is not free treatment. We advertise that the webinar is free because it's an introduction to Ashtanga Chikitsa, which most of the people do not know about. So please do not expect this to be free because there are a lot of things. This is a guided program, which has to be done under guidance only. This is not something that you can record a video and just give it to the world. It's a guided program and it requires a diagnosis also. And it's not for people who are looking for just some tips. कुछ लोग अगर tips ढूंढ रहे हैं, because अगर tips से आपका problem ठीक होना होता तो हजारों videos हैं. There are thousands and thousands of videos on YouTube. So if you could cure yourself through tips only, then सभी लोग कर चुके होते हैं, right? So a holistic way of treatment does not work on tips. Though, just want to make it very clear. Now, what all you get in the program? Pran Shakti diagnosis for root cause determination. This alone could be worth the whole cost of the program. Why? Because not many therapies know a way to find the root cause, or they can I think there is some technical problem why Anilji is not able to share. So we will continue with the program.
Just 2 minutes. Swamiji has also joined in. I'll just make Anilji the host again. Just the last part of the program details. Anilji, you're the host again. Okay, just give me a few seconds. रचना जी स्क्रीन दिख रहा है? Yes, I can see the screen. Okay, so how is the Pran Shakti diagnosis done? You'll get a link to a form in which you'll be asked to do some experiments on your breath and emotions. And you have to record all those in the form. The second thing that you have to do is you have to write So Pran Shakti diagnosis for root cause determination. There is some technical error on Anilji's site, so I will share the rest of the program details. So just give me 2 minutes. Anilji, you can stop sharing the screen. I'll share the screen. Okay, just 2 minutes and I'll share the screen. So we were at Pran Shakti diagnosis. Can everybody see the screen? Anilji, is the screen visible? Neha, is the screen? Okay. Yes, So ma'am. Yes. Pran Shakti diagnosis for root cause determination. तो इसमें हम लोग आपको क्या देंगे? Weekly 1 main class of 60 to 90 minutes. Weekly 1 practice class of 60 to 90 minutes. Online course access for 6 months. आपको course access रहेगा 6 महीने तक. Videos of all kriyas done in the class. ये videos आपको dashboard में मिलेगा जो आप access कर सकते हो. Written instructions in English and Hindi. 2 languages में हम लोग written instructions भी आपको देंगे. What all you get? Private WhatsApp group to ask doubts, questions 6 days. Monday to Saturday आपके सारे doubts क्रिया related, non क्रिया related answer होंगे WhatsApp group में by the mentors. Individual participant progress tracking feedback. हमारा daily progress tracking होता है जो आपको भरना है so that we know that how much you're able to do and what is your feedback. Therapy customization for each participant in the 10th week. इस प्रोग्राम का सबसे यूनिक पार्ट ये है कि हम लोग कस्टमाइजेशन करते हैं ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट का 10th वीक में. यानी कि हर बॉडी अलग है, तो एक नी पेन है और दूसरे को भी नी पेन है, तो जरूरी नहीं है कि सेम रूट कॉज होगा. ये हमारे स्वामी जी रीडायरेक्ट करते हैं टू आइदर द लिवर मैल फंक्शन और द इंटेस्टाइन मैल फंक्शन. रूट कॉज क्या है उसके हिसाब से वो कस्टमाइज कुंभक करवाते हैं इन द 10th वीक. So what all you get in a gist? Pran Shakti diagnosis for root cause determination. Weekly 1 main class of 60 to 90 minutes. 1 practice class of 60 to 90 minutes. Online course access for 6 months. Course dashboard videos of all kriyas done in the class. Course dashboard written instruction. तो आपको वीडियो और रिटन दोनों ही मिलेगा. प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप टू आस्क डाउट्स क्वेश्चंस 7 days. इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट प्रोग्रेस ट्रैकिंग फीडबैक. थेरेपी कस्टमाइजेशन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया फॉर ईच पार्टिसिपेंट इन द 10th वीक. एक्सटेंडेड सपोर्ट फॉर 30 days आफ्टर द प्रोग्राम इज ओवर. तो यानी कि हम आपको छोड़ते नहीं है प्रोग्राम खत्म होने के बाद.
अनलेस एंड अदरवाइज आप हमसे पीछा छुड़ाना चाहें। हम 1 महीने तक आपके साथ लगे रहते हैं कि आपका प्रोग्रेस क्या हो रहा है और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं। So program fee, I'm sure everybody is willing to know the program fee and awaiting it eagerly. So 14,500 कुछ ज़्यादा लग रहा है, right? So since you have made the effort of coming to the webinar, special webinar pricing of 6,500 only and valid till 21st Jan 12:30. So 10 weeks program, 19 classes. So each class costs you 342 per class plus all the 10 benefits that I mentioned. How to enroll? Pay the program fee, post the payment receipt in WhatsApp group, fill the participant onboarding form, join the class WhatsApp group, start attending classes to learn Ashtang Chikitsa. Payment methods, ये सब कुछ आपके webinar group में भी share होगा, chat में भी नेहा share करेगी. Discounted fee is valid till 21st Jan. Payment link, bank account details. So our super team at your service. Rachna Shimal Bothra, that's me, program director. Shalini Bhagwat, the class manager. Ashwini Kumar, the manager IT. And our team of mentors, the prized mentors, Pooja Chopra, Ranjana Swain, Sukesh Raj, R.D. Gupta, Soni Chabadia, Aruna Narayan, Neena Rai, and Suruchi Goel. Enrollment in charge, Neha Upadhyay, Anil Chauhan, WhatsApp admin, technical, Himanshu Reddy, and Anita for personal support. So personal support यानी कि आपको calls आएंगे कि आपका प्रोग्रेस कैसा चल रहा है, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है, उसके लिए हमारा एक डेडिकेटेड बंदा है by the name of Anita. So here I am sharing the program details. Now I would not take much of your time. Swamiji has already joined in and I will just put him on spotlight and we will take up the questions. Just a second. Yes. Thank you so much, Swamiji, and sorry for the delay due to some technical errors. Okay. So I'll just read out the questions first. Okay. I'll just unmute. Yes, you can unmute yourself, Swamiji. Yes. Yes. So I'll just read out the questions one by one. Okay. So Kusum ma'am's question that my husband, his hand shakes when he's holding a glass and when he's walking also the feet slips. So control नहीं है हाथ पांव पे. Person has lost control. What does it mean? इसका मतलब क्या है? पहली बात तो ये न्यूरो डीजेनरेशन, नसें जो हैं वो डीजेनरेट कर गई, वो वापस नहीं बन पा रही, उसमें स्ट्रेंथ नहीं आ पा रहा है, इस वजह से. क्या ये रीजनरेट हो सकती हैं? I'll just mute everybody. Swamiji, please unmute yourself. Yes, Swamiji, please unmute yourself. क्या ये रीजनरेट हो सकती हैं? पहली बात तो देखिए, आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो आप कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे अपने, आप दिमाग में आपको लग रहा है कि आप कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं. कोई भी मेडिसिन लेके आप कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं. नमस्ते की नमस्ते. Oh my God. और चप्पल काटे तूने मारा है. Can we please have some silence, please? Swamiji is trying to explain something. Please unmute yourself. Yes. तो रीजनरेशन कैसे होगा आपके बॉडी का? मैं अभी बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा. थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं. तो अगर आप कोई भी कंट्रोल करना चाहते हैं, किसी चीज के ऊपर भी कंट्रोल करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं आप? मैं सीधा उसके सॉल्यूशन पे आता हूं. एक काम कीजिए, अपने हाथों को ऐसे फंसाइए और खींचिए. डू अ लिटिल एक्सपेरिमेंट, थोड़ा करें. हाथ को ऐसे फंसा लें, उंगलियों को ऐसे फंसा लीजिए
और खींचिए, जोर लगा के खींचे और रोक ले, खींच के रोक लें, वहीं पे होल्ड कर लें। देखिए पीछे सांस रोक रखी है आपने, सांस रोक रखी है आपने। थोड़ा पुश करते हैं, ठीक है, थोड़ा धक्का देते हैं, एक हाथ को दूसरे मुट्ठी से धक्का दें, जस्ट पुश वन पाम विथ अनदर फिस्ट, धक्का दीजिए, थोड़ा जोर लगाइए, रोक लीजिए। देखिए सांस रोक रखी है आपने। कोई भी कंट्रोल आप कैसे करते हैं अपने शरीर से, अपने लिम्ब से या पांव से। पांव को जमीन पे अगर आप जोर से प्रेशर दें तो आपको सांस रोकना पड़ेगा। आपको कोई वेट उठाना पड़े तो आप पीछे सांस रोकते हैं और वेट को उठाते हैं। तो कंट्रोल अपने लिम्स पे आप कैसे करते हैं, सांस रोक के कंट्रोल करते हैं। कोई अगर डांस करे अपने शरीर को, शरीर से, तो आप पीछे अगर देखें अपने, तो आप देख पाएंगे कि अलग अलग अनुपात में सांस रोकते हैं। यू होल्ड योर ब्रेथ इन वेरिएबल प्रोपोर्शन टू कंट्रोल योर एक्शन। तो अगर आपका कंट्रोल खत्म हो गया तो क्या खत्म हो गया, सीधा सीधा आपके एक्सपीरियंस में सोचिए क्या खत्म हो गया, द एबिलिटी टू होल्ड योर ब्रेथ, the ability to hold your breath in variable proportion whatever is needed whenever, आप वो नहीं कर पा रहे। तो क्या वापस करना पड़ेगा ताकि कंट्रोल वापस आ जाए, क्या करना पड़ेगा, आपको सांस रोकने की क्षमता को बढ़ाना होगा। अष्टांग चिकित्सा में वो कोर थेरेपी है, कुंभक चिकित्सा कोर थेरेपी है हमारी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे कंट्रोल वापस आ जाएगा आपका। क्या ऐसे लोग हैं जिनका कंट्रोल आ गया? हाँ जी, ऐसे बहुत सैकड़ों लोग, एक नहीं, एक नहीं, जिनको पैरालिसिस हो गया, उनका पैरालिसिस जो है सेंसेशन खत्म हो गया, वो 95% तक वापस आ गया, ड्रॉप फुट ठीक हो गया, माइस्थीनिया ग्रेविस ठीक हो गई, लॉक जॉ ठीक हो गया, फ्रोजन शोल्डर ठीक हो गया। आप नाम लीजिए, कोई भी न्यूरो मस्कुलो स्केलेटल प्रॉब्लम, इसीलिए हम कह रहे हैं नसों की कोई भी प्रॉब्लम है तो रीजनरेशन कैसे होगा, रीजनरेशन एक ही तरीके से होगा। देयर इज ओनली वन मेथड टू रीजनरेट योर नर्वस सिस्टम एंड दैट इज कुंभक, ठीक है। दवाई खा के एक दवाई बता दीजिए जिससे न्यूरो डीजनरेशन होता है और रीजनरेशन होता है, एक दवाई बता दीजिए, एक दवाई पूरी दुनिया में कोई दवाई नहीं है। उसी की वजह से तो आपकी प्रॉब्लम खराब हुई आई है या आपकी हालत खराब हुई, बिकॉज यू आर नॉट डिजाइंड फॉर मेडिसिन ना। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालते हैं क्या? कभी कभी डाल लिया करो, डीजल सस्ता पड़ता है, या कोई और तेल डाल लो, नहीं डालेंगे ना, मगर इस शरीर के अंदर केमिकल डालते जाएंगे। तो अगर केमिकल डाल रहे हैं तो डिजेनरेशन होगा, तो रीजनरेशन कैसे करेंगे, आपको करना पड़ेगा, कुंभक करना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है। भोजन खा के कोई मैराथन नहीं दौड़ता, अच्छा फूड कर लीजिए, इट्स ओके दैट यू ईट गुड फूड, बट योर स्ट्रेंथ विल नॉट कम बैक। आपको भोजन डाइजेस्ट करने में आपकी ही क्षमता लगती है, आपकी ही शक्ति लगती है, ठीक है। तो आपको सीधे सीधे तरीके से बताया ना कैसे आप कंट्रोल वापस ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Actually, Kamini ma'am is saying, my sister has essential trembling in hands, not Parkinson. Can Kumbha cure it? See, don't get into terminology. किसी ने कह दिया पार्किंसन, वो तो अपने नाम पर रख दिया किसी ने। देखो, आप फिरंगियों के चक्कर में ज्यादा पड़ गए, वो कोई भी चीज ठीक नहीं करते, नाम रखते हैं केवल। तो पार्किंसन होता क्या है और पार्किंसन है कि नहीं है, अब इस गेम में फंस गए। ट्रेम्बलिंग क्यों हो रही है? द कंट्रोल हैज बीन लॉस्ट मे बी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जिसे हम पार्किंसन भी तो न्यूरो डिजेनरेशन ही है। तो लंबे समय में कोई चीज हो जाए तो उसको पार्किंसन कह देंगे, लेकिन ये ट्रेम्बलिंग जो है ना, ये जवान जवान लोगों में शुरू हो जाएगा। आप देखें, थोड़ा समय, 5 से 10 साल अगर आपने अपनी आंखें नहीं खोली तो ये, जिसे आप मॉडर्न मेडिकल साइंस कहते हैं, इसमें साइंस के अलावा सब कुछ है, साइंस नहीं है इसके अंदर, उसने सबकी हालत खराब कर देनी। मुझे एक डिजीज बता दीजिए जो कि कम हो रही है दुनिया में। डायबिटीज बढ़ रही है, थायराइड बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज
नंबर 1 कॉज। कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एपिडेमिक बन रहा है। बच्चों में 10 में से 6 बच्चे और अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में आ रहे हैं। एडीएचडी, कितने सारे डायलिसिस सेंटर खुल रहे हैं। किडनी इश्यू सबको आ रहा है। अब मुझे बताइए, जितनी भी महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं, यहाँ पे औरतें हैं, इनफर्टिलिटी का इश्यू कितने लोगों को आ रहा है। आईवीएफ सेंटर कितने खुल रहे हैं। तो अगर आप ये कहते हैं कि जी हमें तो मालूम है सब कुछ, तो कोई भी डिजीज कम क्यों नहीं हो रहा, बढ़ क्यों रहा है। न्यूरो मस्कुलो स्केलेटल प्रॉब्लम सभी को हो रहा है, सभी को हो रहा है। ऐसे नहीं कि जवान लोगों को नहीं हो रहा है ना। स्पोर्ट्स के लोग ट्रेडमिल पे खेलते खेलते हार्ट अटैक आ जाता है, खत्म हो जाता है। तो आपका ये जो दवाइयों का सिलसिला चालू हुआ ना, इसमें कोई साइंस नहीं है ना। साइंस के नाम पे, पहले तो रिलीजन के नाम पे ये फिरंगियों ने मारा करोड़ों लोगों को, अब ये साइंस के नाम पे अरबों लोगों को मार रहे हैं। पर आप समझदार हैं, आप भारतीय हैं, आप समझदार हैं। प्रॉब्लम ये थोड़ा एजुकेटेड हो गए आप, इसीलिए समझ खत्म हो गई, कम हो गई, है ना। तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। आप लोग भारतीय हैं, आपने दुनिया को साइंस दिया, अभी आंखें खोलने की जरूरत है। तो क्या, कैसे ठीक होगा ये, क्या ये ठीक हो सकता है। आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, एलोपैथी में चले जाएं, दुनिया में कहीं पर भी, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सब आपको ये टेस्ट वो टेस्ट, दोबारा से टेस्ट का कट मिलता है, ये दवाई वो दवाई, दवाई खा के अब और हालत खराब हो जाएगी, इरिवर्सिबल हो जाएगा। ठीक है ना। तो अपने आपका बहुत सेंसिटिव होता है, आपका शरीर बड़ा सेंसिटिव होता है ना। इसका Swami ji, please unmute yourself. There was disturbance in the background. So. आपका शरीर सेंसिटिव होता है, इसका तरीका है काम करने का। आपने इसको क्रिमिनल बना दिया। कोरोना कैसे ठीक करेगा या इन्फेक्शन कैसे ठीक करेगा आपका शरीर, गर्मी पैदा करके, फीवर कहते हैं ना उसे। जैसे ही कोरोना होता है फीवर होता है ना, मगर आप क्या करते हो, एक डोलो, पैरासिटामोल, क्रोसिन खा के फीवर को डाउन कर देते हो। आप शरीर को ठीक नहीं करने देते अपने आप को। दस्त कराता है, दस्त रोक देते हैं। उल्टी कराएगा, उल्टी रोक देंगे। दर्द कराएगा, बोलेगा कि ये प्रॉब्लम है, ठीक करो। आप प्रॉब्लम ठीक नहीं करोगे, दर्द को ही काट दोगे, रेड लाइट को ही तोड़ देंगे। तो आपने शरीर को क्रिमिनल बना दिया। ब्लड प्रेशर बढ़ा के थोड़ा अपना सपोर्ट करता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा के, कॉर्टिसोल बना के, एंटी स्ट्रेस हार्मोन है, अपने शरीर को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करा, वो नहीं करने देते आप शरीर को कोई काम ही नहीं करने दे रहे। और इसे कह रहे हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस। ये तो क्रिमिनल है। अपने शरीर को खराब करना तो क्रिमिनल एक्टिविटी है। इसको कम से कम साइंस का नाम तो मत दो, ट्रीटमेंट का नाम तो मत दो। जब आप शरीर को मारने को ट्रीटमेंट बोलने लग जाएंगे, तब तो भगवान भी नहीं बचा सकता। बचपन से आपने यही किया, कभी तो आंखें खोलनी पड़ेंगी। हमारी नेक्स्ट जनरेशन खराब हो रही, हमारा जीनोम डिविएट हो रहा, हमारा जेनेटिक डिविएशन हो रहा है। 100 साल पहले किसी को डायबिटीज नहीं था। आपके याद कीजिए अपने पूर्वजों को, अपने दादा दादी, नाना नानी, उनको नहीं था प्रॉब्लम। और फिर आपको बताया जा रहा है जेनेटिक है जी। तो आप क्या मार्स से आए हैं, किसी दूसरे ग्रह से आए हैं। 200 साल पहले कुछ भी नहीं था, किसी को हार्ट डिजीज नहीं होता था, ब्लड प्रेशर नहीं होता था, आपको है। फिर कहते हैं जेनेटिक है जी, आपके परिवार में है। परिवार में तो 2 जनरेशन पहले तो थी नहीं कोई प्रॉब्लम। तो आप लगता है पृथ्वी पे किसी दूसरे ग्रह के प्राणी टपके हैं, वहां से स्पेसक्राफ्ट से आए हैं कहीं से। तो आप सवाल पूछिए। कुछ भी बोलने पे मानिए मत। कोई अंग्रेजी बोल देता है तो आपको लगता है बुद्धिमान हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। और किसी ने कैसे कपड़े पहन लिए तो बुद्धिमान हो गया, ये सब चीज छोड़िए। आप लोग भारतीय हैं, आप लोग समझदार हैं। ट्रीटमेंट शुरू कीजिए अपना, आपके शरीर की शक्तियों को वापस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े आराम से हो जाएगा, ये बड़े आराम से हो जाएगा। कुंभक करें, आराम से हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट। Monica Arya ma'am writes about suffering from sciatica pain in left side since 6 months. sciatica पेन क्यों हो रहा है? पहली बात तो ये sciatica होता क्या है?
ठीक है, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे, आपको पता चलेगा कि आपको कोई बहुत बड़ी किताबें नहीं पढ़नी अपने शरीर को समझने के लिए। ठीक है ना, बहुत आसानी से समझ में आता है। अच्छा, sciatica पेन, sciatica एक्चुअली आपके बैलेंस बनाने का मैकेनिज्म, आपके शरीर के बैलेंस बनाने का मैकेनिज्म है ना। कोई अगर आप कुछ बनाएं, कोई ऐसी चीज बनाए, कोई इंसान को आप खुद ही बनाने लग जाए, तो उसका बैलेंस कैसे बनेगा? तो आप कोई तो चीज डालेंगे जो कि बराबर होनी चाहिए दोनों तरफ में, लेफ्ट एंड राइट साइड, है ना। एक खींचेगी तो फिर उस बंदे को भी दर्द होगा, तो उसको क्या करना होगा? दूसरे को वो थोड़ा सा खींचेगा तो बैलेंस में आ जाएगा, तो उसको आराम मिल जाएगा। मगर हम शरीर को देखने की बजाय अपने को समझने के लिए किताबें पढ़ना ज्यादा जरूरी समझते हैं। प्रॉब्लम यही है कि अगर आप एक पांव पे खड़े हो ना और दर्द होने लग जाए, तो आपको मालूम है दूसरे पे शिफ्ट करना। आप एक करवट सोते हैं, दूसरी करवट पे आते हैं ना, बैलेंसिंग आपका शरीर डिमांड करता है हमेशा। मगर आजकल क्या हो रहा है कि हमने जो लाइफस्टाइल अपनाया है, सॉफ्ट चीजों पे ज्यादा रहेंगे ना, सॉफ्ट चीजों पे ज्यादा रहेंगे तो शरीर बैलेंस है कि नहीं आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपको पता नहीं चलेगा तो आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। बहुत आसान चीज है, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो sciatica एक नर्व है, एक नस है जो कि एडी से लेके आपके सिर के पीछे तक जाती है, रीढ़ की हड्डी से होते हुए। पेन क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका लेफ्ट एंड राइट इंबैलेंस है, इसीलिए पेन होगा। या दूसरा पक्ष, एक और पक्ष हो सकता है। sciatica एक और चीज बताती है कि आपके शरीर को इस्तेमाल करने में तकलीफ हो रही है, यानी कि आपके शरीर में जान कम हो गई, जोर कम हो गई। ठीक है ना, दो चीजें। अब बहुत आसानी से इसको ठीक कर सकते। देखिए, आप गाड़ी को का भी व्हील बैलेंसिंग करते हो, मगर अपने शरीर का नहीं करते आप बैलेंसिंग। तो आपके शरीर तीन तरीके की बैलेंसिंग डिमांड करता है। नाभि, नेवल, नाभि हिलेगी तो मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा। डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। नाभि को बैलेंस करना बीच बीच में जरूरी है, इसको सही जगह पे लाना। दूसरी चीज कौड़ी, कौड़ी मतलब मिडिल ऑफ चेस्ट। आपका जो लंग और हार्ट का हेल्थ है ना, वो कौड़ी की वजह से बैलेंस होता है। हार्ट डिजीज क्यों हो रहा है? क्योंकि किसी की अभी मिडिल ऑफ चेस्ट बैलेंस नहीं है। तीसरी चीज होती है वो पहलवान, देखिए आपने, जो जांघों पे ठोकते हैं, इन्हें कहते हैं नले, उनको कहते हैं नले। नले जो बैलेंस होते हैं ना, ये आपका न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का बैलेंस दिखाता है। sciatica का बैलेंस नलों से होता है। अच्छा, ये तीन अगर बैलेंसिंग कर रहे हैं, ये तीनों के तीनों जरूरी है। आप केवल एक बैलेंस करेंगे तो नहीं चलेगा, ये तीन बैलेंस करेंगे ना, तो आपका पूरा राइट एंड लेफ्ट बॉडी, हड्डियां, नसें और इवन आपका मसल्स, इन सबका बैलेंस बन जाएगा। तो हमारे प्रोग्राम में ये तीन चीजें हम आपको प्रोग्राम के अंदर ही इनबिल्ट है ना। ये तीन जैसे ही बैलेंस होंगे, आपका ये sciatica पेन आराम से चला जाएगा बहुत आसानी से। इन जो भी लोग यहाँ पे हैं सीरियस, हम लोग वो विंडो शॉपर्स नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो रियली अपने शरीर पे काम करके प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं वही करें। अच्छा, बहुत आसानी से यहाँ पे जितने भी हैं उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। अच्छा, sciatica इंबैलेंस होता है ना, तो सबसे ज्यादा असर कहां पे आता है? आप इसका फील कर सकते हैं आपके काफ मसल्स में, जो पिंडलियां होती है ना, वहां पे बड़ा फील आएगा। अगर आप पिंडलियों को स्ट्रेच करेंगे ना, तो भी आपको sciatica पेन में मदद मिल जाएगी। पिंडलियों को कैसे स्ट्रेच करेंगे? तरीका बड़ा आसान है। सामने पांव सीधे खोल के बैठ जाएं और दोनों पंजों को मिला लें, है ना। बैठेंगे, पांव सामने खोल के दोनों पंजों को मिला लेंगे। सामने से एक इंसान को बोलना है कि दोनों पंजों को साथ रख के आपकी तरफ में पुश करें। पुश करके थोड़ी देर तक, यानी कम से कम 5 सेकंड तक रोके और फिर ढीला करें। ऐसे वो 10 से 12 बार करेंगे ना एक बारी में, और दिन में 3-4 बार अगर कर लें, तो आपको एकदम से sciatica नर्व खुल जाएगी। मगर क्या वो वापस कैच हो जाएगी? हाँ, वापस हो जाएगी। आपको फंडामेंटली देखो, ये सब ना टिप होते हैं। थोड़ा कर लिया, sciatica पेन को अगर रिलैक्स करना है तो कोई रिलैक्सेंट, मसल रिलैक्सेंट भी खा लेंगे, अश्वगंधा खा लेंगे तो भी आराम मिल जाता है। अगर अश्वगंधा खा लेंगे तो भी आराम मिल जाएगा, दवाइयों से भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। मगर दवाई से कोई भी ठीक नहीं होता, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे वो केमिकल हो। वो बाहर से कोई चीज आप ले रहे हैं तो सपोर्ट है, मैनेजमेंट है, थोड़ा रिकवरी नहीं है, रिकवरी नहीं है, ठीक है ना, रिवर्सल नहीं है। शरीर पे ही काम करना पड़ेगा आपको। तो
थोड़ा सपोर्ट ले सकते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, उससे थोड़ा सपोर्ट ले लें, बट वो ठीक नहीं होगा, आपका फंडामेंटली ठीक नहीं होगा। उसके लिए तो आपको बैलेंसिंग करना ही पड़ेगा, ये तीन चीजों का बैलेंसिंग करना पड़ेगा। नाभिक ऑर्डिनल ये प्रोग्राम के अंदर इनबिल्ट है। थोड़ा अपने शरीर पे काम करेंगे, कुछ समय में एकदम से शरीर हल्का हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। दवाई खा के आपकी लाइफ खराब हो चुकी है, कल को क्रैश आएगा, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। मुझे बताइए कौन जिम्मेदारी लेगा? इतनी दवाइयां बचपन से खाई हैं आपने, अभी तो एक प्रॉब्लम नहीं है ना, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं यहाँ लोगों को। किसी को ऐसा थोड़ी कि एक ही प्रॉब्लम है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स है। मल्टीपल प्रॉब्लम्स में कल को क्रैश आ जाता है, आपका डॉक्टर जिम्मेदारी लेगा या आपके घर वाले लेंगे जो कहते हैं डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, फैशन बना दिया। वो जिम्मेदारी लेंगे कि वो दवाइयां खा के मेरी हालत खराब हो गई? नहीं। डॉक्टर लेगा? नहीं। सरकार लेगी आपकी? नहीं। WHO लेगा? नहीं। वो जो दवाइयां खाते हो कट किसको जाता है? अमेरिका को जाता है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को दवाई बना के आपको खिला रहा है, वो हथियार बना के चौधरी बना करता है दुनिया पे। खाना ही है तो कुछ नेचुरल ले लीजिए, आपको नुकसान तो कम हो, कम से कम ये केमिकल लेना छोड़िए। उसके बाद भी मैं एक बात कहूं, आपने अपनी शरीर को ड्रग एडिक्ट बना दिया। हाँ, कोई पड़ोसी का लड़का ड्रग एडिक्ट नहीं है, आपके घर में दवाइयों का पोथा देख लीजिए कितना रखा हुआ, और बचपन से कितनी खाई है आपने, आप ड्रग एडिक्ट हैं। ऐसी कंडीशन में थोड़ा टाइम लेके इस स्थिति से निकलें। टाइम लेके मतलब रातों रात नहीं निकल पाएंगे, बहुत ज्यादा दर्द होगा, सहनशीलता भी कम हो गई, थोड़ा दर्द भी नहीं सहन होता, फट से एक दवाई खानी होती। तो ये धीरे धीरे करके इससे निकलना पड़ेगा, है ना। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाए, ले लो, उस समय ले लो, मगर आपको ये मानना है कि मैं अपना नुकसान कर रहा हूं या कर रही हूं ये लेके, तो मुझे इस सिचुएशन से तो निकलना ही है। 6 महीना साल भर का टारगेट लीजिए, अष्टांग चिकित्सा कीजिए, थोड़ा आयुर्वेदिक सपोर्ट की तरफ में जाइए। अगर सपोर्ट भी लेना है तो हम पेन का भी प्रोग्राम करते हैं, अगर आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे ना तो आपको मौका मिलेगा कि इमीडिएटली कैसे इमरजेंसी मैनेजमेंट किया जाए नेचुरल तरीके से, उसका भी हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे उस प्रोग्राम में जाने का, ताकि आपको इमरजेंसी मैनेजमेंट भी समझ में आए, है ना। आप केमिकल की तरफ हर समय ना भागें। नेक्स्ट क्वेश्चन। Maria ma'am talks about heavy hanging belly with backache and cannot control urine. हैवी हैंगिंग बेली विथ बैकएक, ये दो चीजें। पहली बात तो फीमेल्स ये बात को समझें, आप सब की के जो साइकिल्स हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया जीवन भर उसको ठीक रखने के लिए। एक फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल एक समाज की हेल्थ दिखाती है। आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल खराब हो रही, इनफर्टिलिटी कितना हो गया, एक बच्चा पैदा करने में मुश्किल हो रही है। और याद कीजिए आपके दादी नानी 5-5, 6-6, 10-10, 12-12 कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी उनको। तो पहली बात तो अगर आप हार्मोनल फ्लो को बिगाड़ेंगे, और फ्लो को कैसे बिगाड़ेंगे, जब शरीर के साथ में ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे, तो आपने छेड़छाड़ तो करना ही है ना। बचपन जब बच्चा पैदा होता है तो कितने वैक्सीन डालते हैं उसके शरीर में, कितने केमिकल डालते हैं, अच्छाई के नाम पे उसके शरीर को बिगाड़ देते हैं। अच्छे के नाम पे ही कर रहे हैं ना, है ना, अच्छे के नाम पे, भगवान के नाम पे ही मारा जाता है दुनिया में सभी को। तो ये अच्छे के नाम पे आपको बुद्धि खोलनी पड़ेगी अपनी, ये गलत तरीका सही नहीं है। तो आपके शरीर के अंदर आप एक केमिकल डालेंगे, कहां जाएगा वो, सबसे पहले कहां जाएगा, मैं आपको बीमारी का पूरा कोर जहां से शुरुआत होती है बता रहा हूं। लिवर में जाएगा, लिवर में जाएगा, लिवर में बम फूटेगा, वो केमिकल बम। तो आपको 500 मिलीग्राम की गोली खानी है, मालूम है आपके शरीर में कितना जाता है, 2 मिलीग्राम, लेकिन आपको 500 क्यों दिया जाता है, क्योंकि लिवर जानता है कि ये आपका भोजन नहीं है, वो निकालेगा, बाहर निकालेगा। लिवर और किडनी साथ में मिलकर काम करते हैं और बाहर फेंकते हैं। 498 फेंक देंगे, 498 मिलीग्राम फेंक देंगे वो बेचारे, फिर भी 2 मिलीग्राम किसी तरीके से लोड बन के घुस जाएगा शरीर में, लिवर कमजोर हो जाएगा। लिवर में क्या गिरता है, इंसुलिन। लिवर में क्या होता है, T4 थायरोक्सिन में कन्वर्ट होता है, T3 में कन्वर्ट होता है। लिवर कमजोर हो गया, वो बेचारा इंसुलिन ले नहीं पाएगा।
इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसे आप डायबिटीज बोलते हैं। डायबिटीज तो आप क्रिएट कर रहे हैं ना, फिर T4 T3 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, इसे कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, इसे आप थायराइड की बीमारी बोलते हैं। तो लिवर का आपने खराब कर दिया। अब हाथ में खरोच लीजिए, थोड़ा हाथ को खरोच लीजिए, जलन होती है, जलन होती है, इसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन। जलन को क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेशन। कोई भी शरीर में आपके दर्द होता है ना, वो इन्फ्लेमेशन की वजह से दर्द होता है। हड्डी इधर उधर होने से दर्द नहीं होता, ठीक है? मेरे पांव की सारी हड्डियां टूटी हुई हैं, दर्द नहीं होता, इन्फ्लेमेशन से दर्द होता है। इन्फ्लेमेशन कहां से होगा? अगर लिवर कमजोर कर दिया आपने और वो बेचारा काम नहीं कर पाएगा, टॉक्सिन पैदा करेगा, यूरिक एसिड बढ़ रहा है ना लोगों का, जलन होती है पांव में लोगों को, एसिडिटी हो रही है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो रहा है, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, क्योंकि लिवर कमजोर हो गया। अब वो बेचारा कमजोर हो गया, आपको जलन होता है, थोड़ा घी लगाएंगे जलन कम हो जाएगा, और वो बेचारा थोड़ा फैट लगा रहा है, फैट क्रिएट कर रहा है, उसे फैटी लिवर कहते हैं। कहते हैं ये भी गलत कर दिया उसने, कोलेस्ट्रॉल कॉर्टिसोल बढ़ा के, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा के कॉर्टिसोल पैदा करेगा ताकि जलन कम हो, इन्फ्लेमेशन कम हो, दर्द कम हो आपके शरीर में। आप वो भी नहीं करने देंगे, स्टैटिन खा के उसको भी खत्म कर देंगे। अपने शरीर के विरुद्ध क्यों हो गए हम? लाखों सालों से किसी को कोई बीमारी नहीं थी, पिछले 100 साल में ही बीमारी हो रही है। तो मेटाबॉलिज्म अगर आपका खराब हो जाएगा तो टॉक्सिन पैदा होंगे आपके शरीर में। टॉक्सिन कहां जमा होंगे? जॉइंट पे जमा होंगे। फिर कहेंगे कि जी जॉइंट घिस गया, जॉइंट में गैप आ गया, वहां पे कार्टिलेज घिस गया, हड्डियां घिस गई। तो सवाल तो पूछना पड़ेगा, क्यों घिस गई? हमारे पूर्वज तो बुढ़ापे तक अच्छा खासा काम कर लेते थे, आज हम काम नहीं कर पा रहे। आज जवान लोगों की हड्डियां घिस रही हैं, उनको दर्द आ रहा है। तो जोड़िए जरा, आप एक ऐसी चीज खा रहे हैं जिसके लिए आपका शरीर बना ही नहीं है। किडनी खराब हो रहा है ना इस वजह से। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कितने लोगों को है? यहां पे ही बहुत लोगों को होगा। डायबिटीज थायराइड कितने लोगों को? यहां पे ही बहुत लोगों को होगा। तो कहने का मतलब ये कि आपको अब समझना पड़ेगा भाई, ट्रीटमेंट जो होता है वहां पे मलहम लगाने से ट्रीटमेंट नहीं होता भाई। दर्द हो रहा है, दर्द की दवाई खा लेने से ट्रीटमेंट नहीं होता, आपके लिवर को ठीक करना पड़ेगा। और कुंभक से वैसे ही करेंगे। कुंभक से मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। अगर इनहेलेशन एक्सहेलेशन होल्ड की बात कर रहे हैं हम, वैसे बॉडी मूवमेंट को भी इस्तेमाल करते हैं अपने थेरेपी में, मगर एक ही पार्ट कुंभक थेरेपी, 3 चीज सीखेंगे आप, अंगन्यासक, हठविन्यासक, कुंभक थेरेपी। कुंभक थेरेपी की बात कर रहा हूं, कैसे आप लिवर को ठीक कर सकते हैं। 1 यूनिट को 5 सेकंड मानिए, 1 यूनिट 5 सेकंड, 1 यूनिट का इनहेलेशन करेंगे, 5 सेकंड का इनहेलेशन, 1 यूनिट का होल्ड करेंगे, 5 सेकंड का होल्ड, 4 यूनिट का एक्सहेलेशन करेंगे, तो आपका लिवर ठीक होना चालू हो जाएगा, क्योंकि उसका असर लिवर तक जाता है। 4 यूनिट का इनहेलेशन करेंगे, 2 यूनिट का होल्ड करेंगे, 1 यूनिट का एक्सहेलेशन करेंगे, तो किडनी की तरफ में असर जाएगा, किडनी रिवाइव होना चालू हो जाएगा। ठीक है? लेकिन आपके शरीर में कमजोर पक्ष कौन सा, ये कौन बताएगा? कोई डायग्नोसिस तो है नहीं, लैब में तो ये सब चीजों उनको मालूम ही नहीं है क्या होता। इसीलिए प्राणशक्ति डायग्नोसिस कोर बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके शरीर में क्या वो चीज है जिसकी वजह से न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम या कोई और दूसरा प्रॉब्लम, चाहे वो डायबिटीज हो, थायराइड हो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, मसल सूख रहे हैं, मसल डीजनरेट हो, न्यूरो डीजनरेशन हो रहा है, हड्डियां घिस रही है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस एग्जांपल लेते हैं, कितने लोगों का कैल्शियम खा के ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो गया? एक एग्जांपल बता दो दुनिया में एक एग्जांपल बता दो, किसी का भी नहीं हुआ। लेकिन कैल्शियम खाने से ब्रेस्ट कैंसर के चांस 200% जरूर बढ़ जाता है। अब मुझे बताइए कैंसर कितना बढ़ रहा है? ब्रेस्ट कैंसर। तो आप कैल्शियम खा के अपने को ठीक कर रहे हैं या कैंसर बना रहे हैं? ये तो सोचना पड़ेगा। डेटा अवेलेबल है, गूगल करिए, ये सब कुछ अवेलेबल है। तो कैल्शियम खाने से कैल्शियम नहीं बनेगा आपके शरीर में, पूर्ति नहीं होगी उसकी, क्योंकि आपके शरीर की कैल्शियम एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो गई है, सोखने की क्षमता कम हो गई है। और खींचते कैसे हैं आप? जूस पिया है आपने, बीच में पल्प फंस गया स्ट्रॉ में, जिससे खींच रहे हैं, क्या करते हैं? जोर लगाते हैं ना,
कुंभक कर रहे हैं आप, यही जोर लगाना कुंभक है। तो किचन का सिंक ब्लॉक हो गया, उसमें जम गया कचरा, खोलना है तो भी जोर लगाना पड़ता है। तो कुंभक करेंगे तो होगा, वरना तो नहीं होने वाला। एक्सरसाइज करेंगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा, क्योंकि हार्ट कमजोर है, लिवर कमजोर है, किडनी कमजोर है, कितना शरीर को इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा जोर लगाएंगे तो वो फेल हो जाएंगे। तो पहले तो अपने हार्ट को, लिवर को, किडनी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कुंभक कर रहे हैं तो आपके चांसेस हॉस्पिटल पहुंचने के ड्रास्टिकली कम हो जाएंगे, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। और इंसान की एक प्राइमरी जिम्मेदारी है, जब तक जिए तब तक इंडिपेंडेंट जिए, किसी की जरूरत ना पड़े आपको, ऐसा जिए। इसीलिए अपने आप पे काम करना शुरू कीजिए, अपनी लाइफ अच्छी कीजिए। देखो, हमेशा जीना ये गलत सोच है ना, हमेशा के लिए मेरी उम्र बन जाए, कभी ना मरे, गलत सोच है, ये भारतीय सोच नहीं है। जब तक जिए बहुत खूबसूरत और बहुत इंटेंसिटी के साथ में जिए, टाइम आने पे आगे बढ़े, ठीक है। उसके लिए कुंभक करें, इंडिपेंडेंट में। Next question by Next Usha ma'am. Osteoarthritis, left hip pain, पिंडलियों में pain at night. आइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, आइटिस जहां लगता है ना, उसका मतलब इन्फ्लेमेशन। अभी मैंने इन्फ्लेमेशन बताया इन्फ्लेमेशन, ज्वलनशीलता, जलन आपके शरीर के अंदर। क्यों? टॉक्सिन बन रहे हैं, और वो टॉक्सिन जमा हो रहे हैं जॉइंट्स में, हड्डियों पे असर कर रहे हैं, आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस कैसे ठीक करेंगे? कोई दवाई है इसको ठीक करने की? दवाई नहीं है इसको ठीक करने की। कैसे ठीक करेंगे? लिवर को स्ट्रांग करेंगे, मेटाबॉलिज्म अगर आप ठीक करें तो आइटिस, इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, इमीडिएट मैनेजमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? अगर ज्वलनशीलता, दर्द हो रहा है ज्यादा, इमीडिएट मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं? इमीडिएट मैनेजमेंट के लिए अगर आप उस जगह को थोड़ा ठंडा कर देंगे तो आपको दर्द कम फील होगा। ये इमीडिएट मैनेजमेंट। कोई पानी की पट्टी लगा लो वहां पे, अगर जिस जॉइंट में ज्यादा दर्द हो रहा है तो उससे थोड़ा कम हो जाएगा, मगर वो ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट क्या है? आप लिवर को स्ट्रांग करें, आपका जठराग्नि या गारेपत्य अग्नि ठीक हो, मेटाबॉलिज्म ठीक हो। मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, रीजनरेशन बढ़ेगा, टॉक्सिन्स खत्म होंगे आपके शरीर में, नई चीजें बनेंगी, और आपको वो प्रॉब्लम जो है उसमें आराम मिल जाएगा। ये ट्रीटमेंट है, ठीक है। इमीडिएटली थोड़ा मैनेजमेंट कई तरीके से कर सकते हैं, वो तो आप कोई क्रीम लगा के भी दर्द वाली कर सकते हैं, पर देखिए वो ट्रीटमेंट नहीं है। आप उसे सोच रहे हैं ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट नहीं है। तो आप कैसे ठीक करेंगे? मेटाबॉलिज्म को ठीक करेंगे तो इन्फ्लेमेशन ठीक होगा, लिवर को आपको। Okay, Suresh sir, you can ask your question. You can unmute and ask your question. Suresh Desai sir. Ranjit Nath sir, you can ask your question. नहीं, जिनका कैमरा ऑन है और जो हाथ दिखा रहे हैं ना उनको बोलो, बाकी तो कैमरा ऑफ है तो क्या पूछा? अच्छा ठीक है, okay. Ma'am, hello ma'am. Yes, sir, you can tell your name please. I am Rukmini. Ma'am, Okay, Rukmini ma'am, you can ask your question please. Rest please, maintain some silence so that Okay, Swamiji is audible. Please unmute yourself. Mute. Yeah. Swamiji, I am having any pain on my right thumb. It is not folding. So how will you diagnose? If I join, how will you diagnose me? What is the problem? We will send you a form link. You just have to fill up the form. Do a little experiment. How long you can inhale, how long you can hold after inhalation, and then what is the length of your exam. If you do just a little experiment with yourself, we'll be able to diagnose where is the problem, where does the problem lie, and then according to that, we'll customize your thing. Right. So it is not that we need your blood sample. Well, even if you give you your blood sample,
and whatever diagnosis is done, is there a treatment? There is no treatment. It's just a gymnastic game kind of a thing going on. We'll pull out some blood, tell you that this number is there, this number is there, but there won't be any solution. So we'll just check what strength of your body you have lost, and accordingly we will fine tune the module so that you gain that strength and your body is able to help itself. Right? Okay. Okay, thank you. T. Kamala, ma'am, you can ask your question, please. Madam, we are doctors. We would like to ask some questions. Yes, Dr. We are Usha senior doctors. Maheshwari. Dr. Yes. Usha Maheshwari. Yes, yes. Namaskar, Swamiji. I'm a doctor Namaskar from ji. Bombay. Yeah, I'm an anesthetist and I have multiple problems. I'm 75 and I have diabetes, I have high blood pressure, plus physical problems of knee joints, both the knee joints. I have been advised for replacement. I have a multiple facet arthritis in my back and a severe leg pain. Okay, so I can explain a lot, but what will happen, even if I explain a lot and you get a lot of information, it will not help. Even if you put the whole Google in your mind, it will not help. So first of all, if you do knee replacement, anything in your body, the body tries to reject it. So you will have to go through steroid therapy for a period of time. What will the steroid do? It will numb the body's response, what we call as immunity. So it will numb the body's response. So the recovery factor, because of steroid therapy, the recovery factor of your body will crash down. And this multiple problem will become monster. Right? But nobody will connect the dot. Because somebody has treated you. So he has done something good. But nobody will connect the dot. The treatment itself will get you into a crash. What happened to Atal Bihari Vajpayee? When his knees were not replaced, at least he could do some work. After knee replacement, he was on wheelchair. And he passed away. So most of the time, what will happen? What? Yeah. He was Most of the time. So what is the solution? Can you go for knee replacement? That's your choice, but it is not a very good choice. It is not a good choice. Not solve any problem. Okay. Even if I say you do whatever, but at least try to do something upon your body so that whatever has been lost, at least you recover some part of it. At least your life should become a little easy. Life will become easy only when you regain the strength which you have lost. In a very simplistic term, there are basically 6 strengths of your body. These are called as Deha Bala, Dosha Bala, Dhatu Bala, Agni Bala, Mano Bala, Ojas Bala. These are various strengths, or you can also call it the metabolic strength of the human body. So it happens on 6 levels, and there are 7 different tissues which get formed because of this 6 level of metabolism. So what are those 7 tissues? Rasa, Rakta, Mansa, Meda, Athi, Majja, Shukra. So it requires 7 different levels of metabolism in the body for those tissues to actually form or get generated. Now, you have lost those 6 strengths. Is there any medicine which will make you gain those strengths? No. You, by taking anything from outside, chemical or non-chemical, even your Ayurvedic medicine will not help to gain those kind of strength. It will be just a little management or support. Yeah. Nothing else. You can't call it therapy. You can't. Swamiji, please unmute yourself. A little management, at least properly choose those kind of stuff, external stuff, which creates lesser harm. So what you can do?
Give yourself a little time, 6 months. Operation Okay. can happen anytime. Okay. Operation can happen anytime. Give yourself 6 months of time. And in that 6 months, just work upon yourself. Even if you have to go for operation, if you have to want to go for operation, create the kind of strength through which, even if you're operated, the damage becomes very less. Your body is Okay. able to recover faster. So first, Correct, sir. increase the recovery strength of your body. And Okay. in the meanwhile, if you see you don't need, the support is enough that you can lead a better life, then you can even avoid going for some kind of a knee replacement. Thank Right. you, sir. This is what you can think of, or you can do. At least give your body some time. Thank you, sir. Next. Okay. धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वामी जी हाँ जी, नमस्कार। बोलिए। हाँ, मेरे हस्बैंड 30% हार्ट की इफिशियंसी है और 5 साल पहले उनका वो स्टेंट लगा था और अभी उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, यानी बहुत कम खा के भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत सफर करना पड़ता है और बॉडी की इम्यूनिटी। मैं समझ गया। 2 चीज आपको आसानी से समझाने का, आप कितना भी बता दे, मैं ये 2 चीज आपको बताऊंगा, ठीक है ना। हार्ट का अगर एफिशिएंसी कम है, ठीक है ना, तो तकलीफ क्या आती है, आप अपने टर्म्स में सोचिए कि आपको तकलीफ क्या आती है, तो आपको सोल्यूशन पता चलेगा। आप देखेंगे थोड़ा जोर लगाने पे सांस फूलने लग जाती है, ठीक है। इजेक्शन फ्रैक्शन अगर कम है तो तकलीफ क्या आ रही है आपको, पहले वो सोचो। आप शब्दों के जाल में ना फंसें, आप पहले सोचें कि आपको तकलीफ क्या आ रही है। तकलीफ क्या आ रही है, जोर लगाने में तकलीफ आ रही है। जोर कैसे लगाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो भी यहां पे हैं ध्यान से सुनिएगा। जोर कैसे लगाते हैं, बिना सांस रोके आप जोर नहीं लगा सकते। तो जो हार्ट की कंडीशन है, जोर लगाने में तकलीफ आ रही है, क्या चीज कम हो गई है आपकी, क्या चीज वीक हो गई है, सांस रोकने की क्षमता वीक हो गई है। कोई भी हार्ट डिजीज आपका ठीक हो जाएगा कुंभक से, कोई भी हार्ट डिजीज। पहली बात, यहां से वो ठीक होना शुरू हो जाए। मगर आप ध्यान दीजिए, ये दवाई नहीं है कि ऐसे इंजेक्ट किया और ठीक हो गया। आपको अपने ऊपर धीरे धीरे करके काम करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने अभी पीछे बोला, क्या बोला, 6 मिनट तो टाइम दीजिए अपने शरीर को, ठीक है। एक चीज ये, तो हार्ट में ये आ गया। दूसरी बात कह रहे हैं गैस बन गई। गैस कब बनती है शरीर में, जब डाइजेशन वीक होता है तो गैस बनती है, फर्मेंट होता है कोई चीज। डाइजेशन फर्मेंटेशन दो प्रोसेस है। डाइजेशन में गैस नहीं बनती, वो प्रॉपरली इस्तेमाल हो जाएगा जो भी खाएंगे। फर्मेंट में सड़ेगा, वो कोई चीज सड़ेगा तो गैस बनेगी। इसके 2 कारण। पहला कारण, जैसे ही आप केमिकल डालते हैं, आपका गट माइक्रोबायोटा, गट में जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कीटाणु हैं, जो फ्रेंडली कीटाणु है, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो मर जाते हैं। तो आपको उसको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है। तो क्या प्रोबायोटिक कुछ अभी भी लेंगे ना, प्रोबायोटिक कहते हैं उसको। हम पहले अचार बनाते थे, कंजी बनाते थे, वो प्रोबायोटिक होता है अगर सही तरीके से उसको बनाया जाए। काली गाजर की कंजी बनती है ठंड के टाइम पे, बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है। और भी आजकल और भी तरीके के मिल्क के प्रोबायोटिक काफी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, है ना, और दूसरे तरीके के प्रोबायोटिक भी अवेलेबल हैं। तो उन कीटाणुओं को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है। अच्छा रहेगा नेचुरल तरीके से उसको रिप्लेस करें। दूसरी चीज, मेटाबॉलिज्म वीक हो गया। जैसे मैंने बताया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, हार्ट डिजीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, डायबिटीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, थायराइड। तो लिवर फंक्शन आपका वीक हो चुका है। हार्ट का डायरेक्ट कनेक्शन होता है लिवर के साथ में। इनफैक्ट कॉन्फिडेंस का भी कनेक्शन होता है लिवर के साथ में। लिवर आपके शरीर का दूसरा ब्रेन है, दूसरी बुद्धि है। उसको मालूम है आपका भोजन क्या है, लिवर को मालूम होता है कि आपका भोजन क्या है, ठीक है ना। तो प्रकृति तो एनिमल्स, जानवरों को कंट्रोल करती है। तो गाय को तो आप मांस नहीं खिला सकते, क्योंकि गाय को पक्का मालूम है उसका भोजन क्या है। शेर को घास नहीं खिला सकते, मगर इंसान के साथ में थोड़ा फ्रीडम है, कुछ भी खाता है वो। उसका सेंस जो कि बहुत ज्यादा होना चाहिए, वही कम हो गया। तो 2 चीज आप अगर इंप्रूव कर दें, कुंभक करना शुरू करें, हार्ट डिजीज ठीक होगा।
लिवर को सपोर्ट मिलेगा, मेटाबॉलिज्म ठीक होगा। प्रोबायोटिक थोड़ा लेंगे या फिर बाकी अगर कुछ सपोर्ट लेना चाहें तो कुछ नेचुरल सपोर्ट लेंगे। 6 महीने का टाइम पीरियड दीजिए, आप देखेंगे आप आज के मुकाबले में कहीं ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे। इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ जाएगा आपका, इजेक्शन फ्रैक्शन बड़ी आसानी से बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये कोई बहुत तोप चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसको किताबों में लिख के आप बड़ा बना सकते हैं। बड़े बड़े ग्रीको रोमन वर्ड जो कि आपकी भाषा नहीं है, किसी दूसरी भाषा में बोलने की नहीं, हमारी भाषा बोलने से इंटेलिजेंट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये आपको समझना पड़ेगा, आप शब्दों के जाल में ना फंसे, अपने एक्सपीरियंस में देखें कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेके, एक एग्जांपल और लूंगा। आपको मालूम है जब आप मुस्कुराते हैं, थोड़ा मुस्कुराए जरा, नहीं मुस्कुरा रहे, थोड़ा मुस्कुराइए ना, देखो प्रॉब्लम तो रहेगी, थोड़ा मुस्कुराइए। मुस्कुराने में मालूम है आपको कितने केमिकल रिएक्शन हुए आपके शरीर में? 1 लाख से भी ज्यादा। सपोज कीजिए आपने कंडीशन डाल दी कि जब तक मुझे 1 लाख रिएक्शन नहीं पता चले तब तक मैं मुस्कुराऊंगा नहीं या मुस्कुराऊंगी नहीं, फिर आप जीवन में कभी नहीं मुस्कुरा पाएंगे। तो यू हैव अ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर योर लाइफ, नॉट थ्रू केमिकल रिएक्शंस बट जस्ट एज इट इज। अभी मुस्कुरा सकते हैं, चाहे तो और चाहे तो नहीं, बिना जाने कि ये कैसे होता है। You will never be able to know how this life functions in its entirety. पूर्ण तरीके से कभी नहीं जान सकते, लेकिन अभी जी सकते हैं, और कैसे जी सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। इतना कंट्रोल है आपका। तो आप वहां पे एक्सपीरियंस पे आ जाइए, क्वालिटेटिव एनालिसिस पे आ जाइए। अभी हमने क्या किया पिछले 100 सालों में? क्वांटिटेटिव एनालिसिस की तरफ में चले गए। हर जीवन को हम क्वांटिटी में नापने लग गए, नंबर्स में नापने लग गए। नंबर्स में अगर आप नापने लग जाएंगे तो कंट्रोल नहीं आएगा। पहली बात तो हमारा शरीर लीनियर नहीं काम करता। मैथमेटिक्स कौन सा डालते हैं? लीनियर मैथमेटिक्स, यूक्लिडियन मैथमेटिक्स डालते हैं इसको समझने के लिए। इवन फार्माकोलॉजी में डोजेज टाइट्रेशन हमेशा लीनियर होके समझा जाता है, हाफ लाइफ पीरियड लीनियर होके समझा जाता है। लाइफ लीनियर है ही नहीं। तो आप गलत मैथमेटिक्स डालेंगे तो ट्रीटमेंट कहां से होगा? तो ये चीज एक्चुअली देखिए, जो बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ऐसे बोलने से, मगर समझिए आप क्वालिटेटिव एनालिसिस पे जाइए, क्या गड़बड़ हो रहा है। क्वालिटेटिव टर्म्स में जाएंगे, आपको मालूम है कैसे ठीक करना है, आपको भी मालूम है कैसे ठीक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, Kalpana ma'am has, or Dinesh sir, you can ask your question, please. There are 2 hands raised. Galaxy tab, Dinesh sir, you can ask your question. Please unmute yourself, ma'am. हेलो। हाँ जी Yes, बोलिए। हेलो। ma'am. हाँ, या नमस्कार जी। एक्चुअली नमस्कार मेरे जी। हाथ में फिंगर्स में थोड़ी स्वेलिंग आई है और हाथ दर्द है, तो टेस्ट वगैरह कराया, कुछ नहीं हुआ है। तो योगा तो मैं करती हूँ, लेकिन यही है कि आपके पास आने से सोल्यूशन आ जाएगा शायद इसका। मेरे पास आने से सोल्यूशन नहीं आएगा। नहीं, मेरा आपको मतलब अपने शरीर, आपके बताए हुए रास्ते पे हाँ, चलने से। शरीर तो आप काम करेंगे शरीर पे तो सोल्यूशन आता है। ये बहुत देखिए यस, अभी स्वेलिंग। फिंगर्स में हाँ स्वेलिंग है और ऐसे ग्रिप से थोड़ा सा, और ये एल्बो में भी दर्द है, तो इसीलिए। देखिए कभी कभी ना ये मौसम की वजह से भी होता है। हाँ जो हाँ सीजन होता है ना, जैसे कुछ लोगों को स्वेलिंग हो जाती है, थोड़ी ठंड लगती है तो स्वेलिंग हो जाती है। कुछ लोगों को पानी लगने से पाँव में थोड़ी सूजन आ जाती है या काटने लग जाता है। तो इसमें कई फैक्टर्स हैं। थोड़ा उसको सेकेंगे, कई लोगों को आराम मिल जाएगा उसी में। कुछ नहीं, ये लोगों काफी को क्या टाइम हो है गया कि ऑलमोस्ट। हाँ हाँ, जी, सॉरी। कुछ लोग एक्टिविटी करेंगे तो फिर आराम मिल जाएगा। कुछ लोगों को थोड़ा सपोर्ट लेना पड़ेगा, टेम्पररी होगा। तो कई बारी ये किसी लंबे चीज की निशानी भी होती है। हाँ, मैंने सारे इसीलिए ऑप्शन बता 4-5 दिया, महीने हो है ना। गए। यस 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 कभी कभी ये किसी लंबे चीज की निशानी भी होती है। ऐसा भी होता है कि आजकल हमारे शरीर में जिसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, वो कई निशानियों के साथ में शुरू होता है। ओके ठीक है ओके। ना।
तो जिसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि आजकल की भाषा में रियूमेटॉइड कंडीशन, रियूमेटॉइड की कंडीशन जो है, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, उसकी शुरुआत कहीं से हो सकती है। अब मुझे सिर्फ ये बताना है कि क्या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाता है? तो मैं आपको सिंपल टर्म्स में इसको पहले समझा रहा हूं और उसके बाद आप ही को पता चल जाएगा कि ये आराम से ठीक हो सकता है। ठीक है? तो अगर एक गाड़ी बहुत धुआं दे रही है और वहां से गुजरते हैं, तो आप सांस कम लेंगे या ज्यादा लेंगे? कम लेंगे। कम लेंगे आप सांस। क्यों? क्योंकि वहां पे जो एनवायरनमेंट है वो कंड्यूसिव नहीं, अच्छा नहीं, तो आपका बॉडी सांस को कम कर देगा। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या एनवायरनमेंट पोल्यूट हो चुका है? आपको पता हो चाहे नहीं हो, क्या आपने पढ़ा है? क्या हमने वातावरण को प्रदूषित कर दिया? तो वातावरण को तो हमने परमानेंटली प्रदूषित कर दिया कि नहीं कर दिया? दिन या रात का कोई मतलब नहीं है। तो या अब मुझे आप बताइए, क्या आप पूरी तरीके से सांस ले पा रहे हैं? शायद आपको नहीं पता, शायद आपको फील नहीं हो रहा, मगर आपका शरीर तो जानता है ना एनवायरनमेंट उसके जैसा नहीं है, अच्छा नहीं है, तो वो नेचुरली कम सांस ले रहा है। तो नेचुरली कम सांस ले रहा है। आपके शरीर में इनहेलेशन की वजह से ना, आपके शरीर में रीजनरेशन फैक्टर एक्टिवेट होता है। कोई चीज बनती किस वजह से? इनहेलेशन की वजह से। और शरीर से निकलती किस वजह से? एक्सहेलेशन की वजह से। और आप दोनों तरफ में देखें, आपका एक्सहेलेशन पे कंट्रोल खत्म हो चुका है। दैट इज व्हाई वी मेक यू डू एक्सपेरिमेंट विथ योर ब्रेथ। और हमको पता चल जाता है कि यहां कहां पे प्रॉब्लम है। अगर आपका एक्सहेलेशन पे कंट्रोल नहीं है तो आप डिफिकल्ट सिचुएशन में रिलैक्स नहीं रह पाएंगे, बहुत जल्दी स्ट्रेस फैक्टर्स बढ़ जाएंगे। यानी स्ट्रेस बढ़ गया, रिस्क बढ़ गया, तो इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाएगी आपकी बॉडी में। यानी एड्रिनल ओवर एक्टिविटी भी कहते हैं, एड्रिनल ओवर एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। मगर खतरा तो परमानेंट है। भाई शेर होता तो आप खतरे से या तो लड़ते या तो भागते, खतरा टल जाता, कुछ समय बाद में सिचुएशन नॉर्मल आ जाती। मगर यहां तो परमानेंट कंडीशन है, परमानेंट खतरा है। एनवायरनमेंट एक परमानेंट खतरा है आपके ऊपर, मगर दवाइयां ले रहे हैं, ये दूसरा खतरा है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खा रहे हैं, हाइब्रिड इनऑर्गेनिक फूड खा रहे हैं, ये तीसरा खतरा है। बच्चों को स्कूल में एजुकेशन देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं उनकी लाइफ में, चौथा खतरा है। ऐसे कंडीशन में आप काम करते हैं ऑफिस में जाके, कॉर्पोरेट में, जो कि नेचुरल नहीं है, पांचवा खतरा है। और भी बताते जाऊं, हर चीज को हमने खतरा बना दिया। इसीलिए मैं इस बात पे जोर देता हूं कि प्लीज ये फिरंगियों के गुलाम बनना छोड़ दीजिए। आप उन्हीं का एजुकेशन कर रहे हैं, उन्हीं की बातों को मान रहे हैं, उन्हीं की बातों को सुन रहे हैं, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, उसके बाद भी वही कर रहे हैं। तो अगर आप परमानेंट खतरा बना दें तो एड्रिनल एक्टिविटी तो बढ़ेगी बचाने के लिए, आपका शरीर तो बचाएगा। आप जीना चाहे नहीं जीना चाहे क्वेश्चन मार्क, मगर आपका शरीर जीना चाहता है 100%, तो वो तो बचाएगा ना, वो इम्यूनिटी को ऊपर उठाएगा बचाने के लिए। मगर भाई ये तो कांस्टेंट खतरा है। फिर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड बॉस कहेगा कि भाई बैठ जाओ, कुछ भी नहीं है, तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, फिर खतरा फिर नीचे, फिर खतरा फिर नीचे। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। लेकिन अगर आप अपने आप को किसी तरीके से स्टेबल कर लीजिए, अपनी क्षमता, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आप अगर आराम से रहने की क्षमता, अपना रेजिलियंस अगर बढ़ा दें, तो क्या खतरा तो वही रहेगा, लेकिन आप बच सकते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर शांत हो जाएगा। एक और एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलूंगा, जब भी टाइम मिले तो आप खड़े होके अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को बोलें कि आपको धक्का दें और आप बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। कैसे बैलेंस बनाएंगे? सांस रोक के। यानी कि उस खतरनाक सिचुएशन में
अगर आपकी सांस रोकने की क्षमता ज्यादा होगी तो आप बैलेंस बना लेंगे, नहीं तो गिर जाएंगे। तो जो रिस्क की सिचुएशन है, ये सारे रिस्क हैं, इसमें आपकी क्षमता ही आपको बचा सकती है, कोई और चीज नहीं बचा पाएगी आपको, कोई और चीज नहीं बचा पाएगी। एक दवाई से एक बीमारी और उस बीमारी से दूसरी दवाई उसको ठीक करने के लिए, ये तो बहुत खतरनाक सिचुएशन है। एनवायरमेंट आप ठीक नहीं कर सकते, आज करेंगे 200 साल लग जाएंगे। भोजन तो वही खाएंगे ना जो अवेलेबल है। और जो आपने सिचुएशन क्रिएट कर दिया एजुकेशन का, वर्कस्फेयर, इकोसिस्टम, जो समाज का हमने इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया, फंक्शनल इकोसिस्टम, वो एकदम से तो नहीं बदलने वाला। तो कौन बचा सकता है आपको? आपका शरीर, आपका बैलेंस में रहने की क्षमता, वही बचा पाएगी आपको, और कोई नहीं बचा पाएगा। ये जरूरी है, ये मस्ट है, ये कंपलसरी है। इमरजेंसी लेवल पे ये सबको करना चाहिए, वरना ह्यूमन जीनोम, हमारा जेनेटिक्स डिविएट हो रहा है। हम म्यूटेंट्स हैं। आपने हॉलीवुड की मूवी देखी, म्यूटेंट बन जाते हैं, सुपर पावर मिल जाता है, मगर इंफीरियर पावर वाले म्यूटेंट्स हैं हम लोग, जो चल नहीं पाते, जिनका हार्ट काम नहीं कर रहा, जिनका लिवर काम नहीं कर रहा, जो जेनेटिक डिविएशन हो गया, जेनेटिक बीमारी आ गई, हम म्यूटेंट बन चुके हैं। ठीक है, तो अपना एजुकेशन वेस्ट पे ना डालें, वो सबसे बेवकूफ प्रजाति है इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। जो फिरंग है वो सबसे बेवकूफ प्रजाति है, डरी हुई सबसे बेवकूफ प्रजाति है। आपको वापस लेना, आप भारतीय हैं, आप इंडियन हैं, आप भारतीय हैं, आप समझदार लोग हैं, आपको आंखें खोलनी ही पड़ेंगी, आपको सबकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अपनी ही नहीं, सबकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और हमें दुनिया में लोगों की मदद करनी, सबको चाहिए मदद, हमें करनी है। थैंक यू। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद में आप अपने क्वेश्चन अपने ग्रुप में डाल दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन। Kalpana ma'am, you can ask your question, please. Or Indan Mohan sir. I've unmuted both of you all. मैम, जो हमारे जैसे 2 मंथ का 1.5 मंथ का बेबी है, बहुत सफर कर रहा है अभी कफ और कोल्ड में, तो क्या उसको दवा देना चाहिए या कुछ गुरुजी क्या बोलेंगे? देखिए, अगर बहुत छोटा बेबी है तो वो उसके रिकवरी फैक्टर्स बड़े अच्छे होते हैं। हम डर जल्दी जाते हैं, हम डर जल्दी जाते हैं। उसका शरीर ना काम कर ही रहा है उसको ठीक करने के, लेकिन उसके बावजूद भी कहूंगा कि अगर आप डर जाएं तो कोई नेचुरल ऑप्शन आप चूज करें, कोई नेचुरल ऑप्शन चूज करें, है ना। जैसे कोई हर्ब, जड़ी बूटियां या फूड का कोई एस्पेक्ट है, नेचुरोपैथी टाइप की चीजें, कुछ नेचुरल ऑप्शन चूज करें। लेकिन बेबी में एक बात का ध्यान रखें, बेबी में एक बात का ध्यान रखें, उसकी नाभि हिल जाती है बहुत जल्दी। तो पहले जो दाई माँ होती थी, बूढ़ी पुरानी औरतें होती थी ना, वो बच्चे के पाँव को थोड़ा खींच के ना उसकी नाभि सेट कर देती थी, तो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होता था। ठीक है ना। या फिर थोड़ा हींग पानी लिया, उसके नाभि में डाल दिया, ऐसा करके, या तेल का हमेशा इस्तेमाल करना, मालिश में उसके हाथ पांव को इस तरीके से खींचना कि अलाइनमेंट हो जाए, बैलेंस बन जाए। ये एक प्रोसेस बड़ा कॉमन था हमारे देश के अंदर। हमारे जो बूढ़ी पुरानी औरतें थी वो सब करती थी घर में, ये सब बहुत आम था। आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली होने लग गई, तो हमें हर चीज का ज्ञान भी नहीं है, और देखने के लिए हमें गूगल में ढूंढना पड़ता है, गूगल में भी नहीं है वो ज्ञान, क्या करेंगे आप, है ना। क्योंकि हमने उस ज्ञान को संजोया नहीं, हमने उस ज्ञान को संजोया। न तो ब्रीद ले सक रहा है, न कुछ कर सक रहा है। तो उसमें ना उसके छाती का वो जो कौड़ी बताया ना, उसका इम्बैलेंस हो गया होगा। 3 चीजें आपको मैं बता चुका हूं, लेकिन अभी करेंगे क्या। देखिए, एक तो ये कि अगर कोई जानते हैं ऐसा, तो उनके पास में ले जाके उनको दिखा दीजिए। कुछ नहीं हो तो देखिए, जो चीज अवेलेबल होगा वही तो करेंगे ना। जो चीज जिसकी मार्केटिंग सबसे ज्यादा है वही खरीदते हैं आप।
तो कुछ नहीं है तो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, डॉक्टर को दिखा दीजिए किसी। हाँ, लेकिन एक चीज हमेशा समझिए, बच्चा पैदा होने के बाद इसको ठीक करना बेवकूफी है। बच्चे को पैदा होने से पहले जेनेटिकली स्ट्रांग करना जरूरत इस बात की है। तो हम एक प्रोग्राम रन करते हैं, आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं बाकियों को कि जो कंसीव नेचुरली नहीं कर पा रहे, तो गर्भाधान प्रोग्राम एक हम करते हैं जिसमें कि नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। दूसरी बात, गर्भ के पीरियड में, गर्भधारण के पीरियड में, प्रेगनेंसी के पीरियड में हम एक प्रोग्राम रन करते हैं, इसे कहते हैं अष्टांग गर्भ संस्कार, है ना। उससे क्या, हम जेनेटिकली स्ट्रांग बना देते हैं बेबी को। उसको वही क्रॉनिक डिजीज जो मां में है, पिता में है, वो उसको इतना इफेक्ट नहीं करेगा। उसके बावजूद भी एक बात कहूंगा, प्रकृति को पूरी तरीके से हम डिकोड नहीं कर सकते। हम बहुत हद तक इस पे काम कर सकते हैं, मगर इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जिसे हम कार्मिक फैक्टर्स कहते हैं। उसको हैंडल करना, अगर आप इमीडिएट हैंडलिंग नहीं होती है मगर लगातार काम करते रहना पड़ेगा, तो उसको हम हैंडल कर पाएंगे। इमीडिएट हैंडलिंग उसकी नहीं हो पाती। कई बारी कई दोष जो प्रॉब्लम जो है ना, वो कार्मिक फैक्टर्स की वजह से इतना जोर होता है कि आप कुछ भी कोशिश कर रहे हो ठीक उस समय नहीं हो पाता। तो उसमें इसीलिए लंबे समय तक थोड़ा शरीर पे काम करने की जरूरत है। और कुंभक आपके कार्मिक दोष को भी खत्म करता है, इसीलिए थोड़ा टाइम देके काम करें। अभी इस वक्त में बेबी के लिए नाभि का बैलेंसिंग, यानी दोनों पांव को अगर ऐसे पकड़ के ना, अगर हल्का हल्का खींचेंगे भी ना, तो उसकी नाभि आ जाती है सीधी। मगर अच्छा रहेगा कोई जानकार है तो उनसे करवा लीजिए, है ना। उससे क्या आएगा। और हाथों को क्या होता है, बेबी को, छोटे बेबी को ना मालिश किया जाता है, थोड़ा ऐसे उछाला जाता था, ऐसे थोड़ा उछाला जाए। उछालने की वजह से क्या होता है, उसकी कौड़ी जो है, जो मिडिल ऑफ चेस्ट है ना, वो अलाइन होता था। ये दाई माएं और बूढ़ी पुरानी औरतें बहुत करती थी, थोड़ा उछालती थी, तो उससे ना उसकी सांस रेगुलराइज हो जाती थी। जब भी उछाल के आप गिराएंगे ना, तो सांसों पे एक थोड़ा हल्का सा एक ट्रिगर जाएगा, झटका जाएगा, उसकी वजह से उसकी सांस रेगुलराइज होती थी। लंग और हार्ट का कोऑर्डिनेशन इससे बढ़ता है ना। इसे ये कूर्म क्रिया भी इसको हम कह सकते हैं, कुंभक के टर्म्स में कूर्म क्रिया। मगर ये साइंस हमारा खो गया। तो अभी जो ऑप्शन अवेलेबल है आप कीजिए, है ना। जो ऑप्शन आपको लगता है कोई अगर ऐसा कर, मगर ये अलाइनमेंट नहीं है, छाती का अलाइनमेंट नहीं है और नाभि का अलाइनमेंट नहीं है, उसको करवाइए। या फिर कोई दवाई देके उसको थोड़ा सपोर्ट दे दीजिए, है ना। बच्चे को थोड़ा नेबुलाइजर देके भी उसको सपोर्ट मिल जाता है। बीपी रिवर्सेबल है, बीपी 100% बीपी रिवर्सेबल, 100% रिवर्सेबल। ओके। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि मेरे हस्बैंड को इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना अभी, कफ और खांसी का, तो कम ही नहीं हो रहा है वो, और खांसी करते करते सब पसलियां बहुत दुख रही है। देखिए, खांसी बहुत अच्छी चीज होती है अगर बचपन से हम बच्चों की खांसी ना रोकें। खांसी का मतलब होता है शरीर कुछ फेंकना चाह रहा है बाहर, और हम क्या करते हैं, कोई सिरप पिला दिया, कोई कुछ ऐसा एंटीबायोटिक खिला दिया और उसकी खांसी को रोक दिया। बच्चों में कभी भी आप कुछ चीजें को बिल्कुल नहीं रोकना। एक तो खांसी नहीं रोकनी, दस्त नहीं रोकना, उल्टी नहीं रोकना, फोड़े फुंसी को दबाने की कोशिश नहीं करना, फीवर को दवाई देके खत्म करने की कोशिश नहीं करना। 5 चीजें बता दी। ये 5 चीजें बच्चों में अगर ना करें तो कुछ सालों के बाद में आपका शरीर जो है उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन दवाई खा के दबाने की वजह से इम्यूनिटी क्रैश कर जाती है और वही चीज बुढ़ापे तक असर करती है। तो अभी क्या कर सकते हैं, खांसी को रोकना नहीं, गर्म पानी चाय की तरह, बहुत गरम गरम चाय की तरह थोड़ी थोड़ी देर में पीते जाएं, खांसी में आराम मिल जाए। जो दर्द हो रहा है ना, कफ पिघलेगा और बाहर निकलेगा, उसको बाहर निकलने देना है, रोकना नहीं है, उसको निकलने देना है। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन अगर आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर दीजिए। कोई दवाई आयुर्वेदिक या इसबगोल, हरित की, त्रिफला, जो भी हो, उससे आपका वो जो कॉन्स्टिपेशन है उसको रिलीव कीजिए। उससे आप देखेंगे कि थोड़ा आराम मिल जाएगा। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, शहद और काली मिर्च, 5 काली मिर्च, थोड़ा शहद मुंह में डाल लीजिए और मुंह में ही काली मिर्च को
चबाना है, चबाना है, चबाना है। गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, शहद या गुड़। इस समय शहद बहुत अच्छी चीज है, शहद लेते हैं, शीतोपलादी करके एक चूर्ण आ जाता है आयुर्वेदिक, शीतोपलादी आधी चम्मच शहद, थोड़ी थोड़ी देर में चाटते रहें, सपोर्ट मिलेगा, मगर बंद ना करें खांसी। चाहे ये 2 हफ्ता 3 हफ्ता चले, चलने दीजिए, अगली बार खांसी नहीं होगी। अगर इसको रोक देंगे तो अगली बार और खतरनाक खांसी होगी, ध्यान रखिए इस बात का। तो आप लोगों का वेबिनार में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का आगे का जीवन के लिए खूब खूब शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप ग्रुप में डाल दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच स्वामी जी, गुड नाइट। धन्यवाद। और जिसका क्वेश्चंस बाकी रह गया, आप लोग प्लीज वेबिनार ग्रुप में लिख दीजिए, हम लोग आंसर देंगे। गुड नाइट, स्टे वेल, स्टे हैप्पी। Thank you.